ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया. A very good morning to everyone present in today's webinar on Advanced Excel. I, Ashiyatre, would like to extend a warm welcome to the Chairman of the Jaipur branch of the CIRC of ICAI, CA Anil Yadav sir, the Secretary of the Jaipur branch of CIRC of ICAI, CA Kuldeep Gupta sir, and our very eminent guest for the day, CA Rohit Pradhan sir, along with our program convener, Mr. Naresh Andoria, and our event conveners, Ms. Neha Soni and Mr. Vikram Solanki. I would also like to take this opportunity to thank our Chairman, CA Anil Yadav sir, and our Secretary, CA Kuldeep Gupta sir, for providing our students with such an incredible prospect to showcase and hone our co-curricular as well as curricular skills to the wonderful initiative of celebrating a virtual Independence Day in such a time of crisis. Sir, I can assure you that this step has come as a breath of fresh air in the time of monotony in every CA student's life. I wholeheartedly thank you, sir, on behalf of us all. I would like to invite CA Anil Yadav, sir, to grace us with his kind words. Thank you so much, Ashi. Respected CA Rohit Pradhan, sir, today's speaker, my younger brother Naresh, Ashi, and all the conveners of these programs and all the students, a very good morning to all of you. I hope you all are doing very well. And मैं ज़्यादा time नहीं लूँगा. I just want to share 2 and 3 things with you. First, do focus on your exam. मुझे लगता है कि कई बच्चे हैं वो YouTube के चैनल ज़्यादा देखते हैं या कोई WhatsApp के ऊपर मैसेज आते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. प्लीज आप उन सब से दूर रहिए. और अगेन रिक्वेस्ट, जो ICAI की वेबसाइट है सिर्फ वहीं से नोटिफिकेशन देखिए और जो भी डिक्लेरेशन आती है सिर्फ वहीं से आप लोग उसको फाइनल करिए. एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं. FAQ बहुत जल्दी आने वाले हैं. बच्चों की क्वेरीज है कुछ, फिर भी अगर आपकी और कोई इंडिविजुअली कोई क्वेरी है तो आप जयपुर ब्रांच को बता दीजिए, आप हमें किसी मैनेजिंग कमेटी को बता दीजिए, उसका हम आपको ऑथेंटिकेट आंसर दे देंगे. और मीनवाइल आई थिंक क्योंकि हमारी धीरज खंडेलवाल सर से बात भी चल रही थी BOS में, तो FAQ भी बहुत जल्दी आ जाएंगे. बट एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए. एग्जाम आपके होंगे नवंबर में, तो आप उस हिसाब से मेंटली तैयार होकर काम करना स्टार्ट कीजिए. सेकंड, कोविड अभी गया नहीं है बच्चों. कोविड अभी है और अब ज्यादा है. पहले हम लोग शायद हो सकता है कि रस्सी को सांप समझ रहे थे, अब हम लोग सांप को रस्सी समझ रहे हैं. तो ये गलती ना करें. कोविड से बच के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का यूज करें. तो यही रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अगर कुछ भी होता है 10 to 15 डेज, ये बहुत क्रूशियल टाइम है हमारे लिए. आप लोग समझिए एग्जाम आने वाले हैं, अगर हमारी कोई तबीयत खराब होती है तो हमें हमारी सेहत का पूरा ध्यान रखना है. मे बी फीवर्स भी हो सकता है, अभी मौसम भी थोड़ा ऐसा है, तो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए. नवंबर में एग्जाम है. इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि सर एग्जाम हो, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज हम लोग करना चाहते हैं ब्रांच के साथ मिलके, तो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम. कोई आइडियाज आपके पास है, कोई चीज हो, प्लीज आप आइए, हमें बताइए. जयपुर ब्रांच हमेशा आपके साथ खड़ी है. कोई भी आपको कोई इशू आता है या पर्सनल कोई चीज है, प्लीज हमें बताइए. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. Thank you, sir, for enlightening us. Now, before we move forward, I would like to take you all through some housekeeping. If you have any questions, kindly write them in the comments box or the chat box below. Sir shall be addressing them towards the end. Moving on. जहाँ चलेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता. कुछ ऐसा ही मिजाज है हमारे आज के मेहमान का. Our guest for today's session is a dynamic personality with an experience of more than 10 years in the field of business management, tax consultancy, and management consultancy. He is also a certified accredited PST trainer and a forensic accountant and fraud detector recognized by the ICAI. And to contribute to his vibrant personality, he also imparts counseling to students and contributes a big hand in keeping Mother Earth safe. He interprets mythological scriptures like the Ramayana and their application in the present era. He takes spiritual and inspirational sessions on a number of sensitive topics. He is also the founder of Happiness Kida, a social initiative engaged in the field
engaged in the empowering of those with less power in their hands. He is now employed at Surya Roshni Limited, New Delhi, and Genus Power and Infrastructure Limited, Jaipur, in the field of cost and internal audit. He is also the holder of a multitude of awards, some of which are the Lions Club International Award for Valuable Contribution in the Society and the Outstanding Performance Award in Surya Group. Moreover, he has been a part of a host of activities, social and economic, some of which include performing the role of a moderator in JYF 2017 on Indian economy with Mr. Sandeep, being the coordinator of Social Media Confluence 3.0 2019 organized by Team Weapon, and being a speaker at the 6th National NGO and CSR Summit 2019. But I kept one of his talents for you all in the end. Sir is also a technology fanatic, so he imparts training on advanced Excel, and that is why we are all here. With a huge round of applause virtually, I would like to invite our speaker for the day, CA Rohit Pradhan, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच आशी. बहुत लंबा तुमने मतलब प्रोफाइल पूरा ही पढ़ दिया करीब करीब. चलो अच्छा है. तो अभी है ना बहुत कैजुअल रहने वाला है सेशन. थोड़ा सा मैं फॉर्मल बोल नहीं पाता, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं फॉर्मल नहीं रह पाता, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी चल रहा है टाइप ऐसा फील आएगा आपको. लेकिन अपन शुरू करेंगे एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे. तो कुछ लोग ऐसा होंगे कि शुरुआत में उनको लगेगा कि ये सब मुझे आता है, ये तो मुझे पता ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को कितना कुछ पता है. अभी जहाँ तक मुझे पता है जितने लोग जुड़े हैं उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा लोग हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है या फिर हम लोग जब ऑडिट करते हैं या हम लोग जब भी कोई रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो मैं पिवट टेबल को आज अपन फोकस करेंगे, बिकॉज 2 घंटे में एक्सेल पूरा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको. तो हम लोग कोई एक टॉपिक लेकर के उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. तो मेरा फेवरेट पिवट टेबल ही रहता है और पिवट टेबल से पावर पिवट तक हम चलेंगे. तो वो जर्नी हम करने वाले हैं आज शुरू से एंड तक. उसके पहले मैं कुछ आपको है ना डेटा स्ट्रक्चर करने से, डेटा जब हम एनालिसिस करते हैं उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी है. तो मैं कुछ टेक्स्ट टू कॉलम जो अपना एक पार्ट है उसको थोड़ा सा कवर करूंगा. वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा ही पार्ट है उसका, ताकि हमको समझ में आए कि हम लोग कैसे उसमें डेटा स्ट्रक्चर करते हैं, हमें क्या एरर आती है, इस वजह से पिवट टेबल नहीं बन पाती या वीलुकअप नहीं लग पाता. ऐसे बहुत से फंक्शन है जो काम नहीं कर पाते, जहाँ हमें मैचिंग करानी होती है, और मैचिंग के बिना एक्सेल में काम होता नहीं है. तो अभी तो सबसे पहले मैं ये आपको स्ट्रक्चर बता रहा था, और अभी अनिल सर शायद ऑफलाइन हो जाएंगे थोड़ी देर बाद. तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ICI फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. और नरेश थैंक यू सो मच, आशी थैंक यू सो मच, और बाकी जो भी स्टाफ अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सबको. तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएट किया है कि वर्चुअली आप लोग ये सब स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखिए अभी सब लोग स्टूडेंट खुद कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, सर इनका बहुत दर्द हो रहा है अभी, कितना और पढ़ना है इनको पता नहीं है अभी, और कंटिन्यू चली जा रहा है. मतलब पढ़ने वाला सिस्टम शुरू हुआ था कि हम 4 महीने पढ़ेंगे, 5 महीने पढ़ेंगे, वो एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन के साथ साथ. और अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में सब लोग हैं, तो चलिए कुछ अच्छा इम्पार्ट हो जाए नॉलेज में, ये सोच के आप लोगों ने किया है. इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और थैंकफुल हूँ इन चीज़ों के लिए जो आप लोग इनिशिएट ले रहे हैं. अभी अपन जब एक्सेल वाला काम कर रहे हैं तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा आपको. उसके बाद उस स्क्रीन के ऊपर जो जो चीज़ें चल रही है मैं स्लो चल रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करते जाइए. कुछ जॉट डाउन करना है जॉट डाउन कर लीजिए. शीट मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा अभी, बिकॉज फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो अभी हम एक बार, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. अभी मैं ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ एक बार मुझे कोई बता दे, एक बार कोई भी, नरेश या आशी कोई भी, ये मैं ऑडिबल हूँ या नहीं. तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ. विक्रम सोलंकी जी का थम्स अप आ गया, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ऑडिबल होगा. चलिए ठीक है, तो ऑडिबल है तो मैं शुरू करता हूँ. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको अभी. सो यू कैन सी द स्क्रीन. यहाँ पे एक फाइल है. एक जना कोई भी अपना ऑडियो म्यूट से अनम्यूट कर लीजिए, आशी या नरेश में से, सो दैट मैं जो बोल रहा हूँ वो बता पाए कि मैं वो सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे, ताकि बाकी सबको प्रॉब्लम ना हो. तो नरेश या आशी दोनों में से कोई एक भी अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए. Yes, sir. हाँ, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir, completely. तो ये स्क्रीन आपको शो हो रही है? Yes, sir. ठीक है, डन. तो मैं अभी एक नई स्क्रीन खोल रहा हूँ आपके सामने. सो अभी मैं आपको पहले इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ताकि आप सब देख पाओ. तो अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पे डेटा टाइप कर रहा हूँ, ये नंबर्स है कुछ. जब भी हम नंबर टाइप करते हैं तो राइट अलाइन हो जाता है, और जब भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं वो लेफ्ट अलाइन होता है. मैं दिखाता हूँ आपको कैसे. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अलाइन करूँगा, अभी मैं अगर टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ तो आप देखिए लेफ्ट साइड अलाइंड है, ये इट मीन्स दिस इज टेक्स्ट. और अगर ये राइट अलाइंड है, दिस इज नंबर. ये एक्सेल अपने आप कर लेता है.
एक्सेल बेसिकली बहुत वास्ट स्कोप इसका होता है, और अभी हम पावर बीआई तक जा चुके हैं। अब पाइथन से लिंक करके हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं एक्सेल के साथ में, और बहुत सारे जगह एक्सेल काम आ रहा है। और अगर आप किसी भी प्रोफेशन में, मार्केटिंग में भी हैं, एचआर में भी हैं, तो भी आप एक्सेल के बिना काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत बेसिक टूल बन चुका है अभी। तो बेसिक से एडवांस तक एक्सेल ने जो सफर जारी जो किया है वो बहुत ही ब्यूटीफुली इसने क्या किया, और इसके बराबर कोई अभी तक आ भी नहीं पाया। जो एक्सेल करके दे सकता है वो और सॉफ्टवेयर नहीं करके दे पा रहे अभी तक भी। तो एक्सेल वाइडली भी अप्रोचेबल है और अवेलेबल भी है। तो इसके अंदर है ना बहुत सी चीजें हैं, हमको लगता है कि शायद इतना ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं। उसके अंदर आप जाते जाएंगे, जिसमें आप पाइवट टेबल दिखाऊंगा तो एकदम डीप तक हम पाइवट टेबल पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आप देखिए लेफ्ट साइड में अलाइंड है, ये राइट साइड अलाइंड है। अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट लिखना हो, फॉर एग्जांपल मैं 0 से लिखता हूँ कुछ भी डेटा और एंटर मारता हूँ तो राइट अलाइन हो जाएगा। मैंने लिखा 0 1 2 3 करेक्ट, ये मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया है अभी। अगर मैं एंटर मारूंगा तो 0 ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, बिकॉज इसको लगता है नंबर है, और नंबर में 0 अगर आप आगे लगाते हो तो कोई मतलब नहीं है। तो देखिए साइड में चले गया, 0 इसने अपने आप हटा दिया। पर अगर मैं 3 नंबर लिखता हूँ जो 08 से शुरू करता है, या मैं कोई भी जीएसटी नंबर लिखता हूँ 08 से शुरू होता है, पर जीएसटी नंबर के अंदर हमारे को अल्फाबेटिकल नंबर मिल जाते हैं, तो जहाँ अल्फाबेटिकल फॉर्म्स होती है वहां पे तो ये टेक्स्ट समझ लेगा। पर अगर मैं 3 नंबर की बात करूँ जो पहले हुआ करते थे, तो 08 से अगर आप कोई भी टेक्स्ट शुरू करके एंटर मारते हो तो देखिए डिजिट कम हो गई इसकी, या 0 हटा दिया इसने। हम लोग एक इसका रास्ता निकालते थे, क्या करा करते थे कि 0 से पहले हम लोग अपॉस्ट्रोफी लगा के फिर 0 लगा दिया करते थे, उसके बाद इसको डेटा कर लेते। तो ये लेफ्ट देखिए अभी ये लेफ्ट अलाइंड हो चुका है, और आपको अपॉस्ट्रोफी दिखना बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर आप इनकी लेंथ निकालेंगे ना, तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग एलियन करके एक फॉर्मूला होता है यूज करते हैं। देखिए इसकी लेंथ 7 आ रही है, और इसकी लेंथ है वो जो है वो भी 7 आ रही है। तो इसमें देखिए एक्चुअली ये जो अपॉस्ट्रोफी हमने साइड में लगाई ये इसमें कवर करता है। तो अगर आप ये कर देंगे ना कभी भी, तो आप कभी मैच नहीं करा पाएंगे। वीलुकअप लगाएंगे या पिवट टेबल लगाएंगे तो एरर आएगी हमेशा। तो हमेशा जब भी हमें टेक्स्ट लिखना हो, जैसे मैं टेक्स्ट में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। हमारा जो ऐसा आइडेंटिटी नंबर होता है वो दिखता है न्यूमेरिक पर वो टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी भी फोन नंबर लिखना हो तो उसको टेक्स्ट में लिखिए, आप कभी भी न्यूमेरिक में मत लिखिए, बिकॉज न्यूमेरिक में लिखेंगे तो वो हमें कभी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। किसके साथ? हमें कभी बैंक के आईडी के साथ हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, कभी भी हमें बैंक अकाउंट नंबर के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, आधार कार्ड के साथ हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ऐसे वेंडर कोड जब जनरेट होता है एसएपी पे तो उसके साथ भी हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो दीज आर ऑटोमेटिकली इन द टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में आप उनको लेंगे तो वीलुकअप लगाना या पिवट टेबल पे उसको लेके जाना थोड़ा आसान होता है, बिकॉज हमें उसमें नंबर वाला कोई भी काम नहीं करना। इट मीन्स हमें ना तो उसमें प्लस करना है ना माइनस करना है, ना भी हमें इसको कोई सम करके देना है, बिकॉज वो नंबर्स हैं। दीज आर आइडेंटिटीज फॉर समवन, चाहे वो वेंडर कोड के रूप में हो चाहे वो आधार कार्ड के रूप में हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको कर सकते हैं। तो मैं पहले कुछ सेल है यहाँ पे, इन सेल्स को और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। होम पे जाके आप जनरल की जगह इसको यहाँ टेक्स्ट कर दीजिए। अभी आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं क्या मेरी? So there seems to be a problem. आपका जो स्क्रीन है वो विजिबल है, बट उस पे जो एक्टिविटी हो रही है वो विजिबल नहीं है। अच्छा, अभी एक्टिविटी कुछ नहीं दिख रही है आपको ऐसा? हाँ जी सर। तो वेट अ मिनट, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यस। एक मिनट। अच्छा, अभी ये दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। अभी एक्टिविटी दिख रही है, माउस पॉइंटर मेरा मूव कर रहा है, आपको दिख रहा है? यस सर। यस। ठीक है, तो इसके पास में शीट खोल रहा हूँ मैं। अभी देखिए ये दिख रहा है आपको, नई शीट खुली वो? यस सर। करेक्ट। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। तो मैं आपको जो बता रहा था, मैं सिर्फ आपको एक बार जूम कर रहा हूँ मैं डेटा यहाँ से। करेक्ट। तो मैं बता रहा था आपको, जब भी हम टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं हमें नंबर लिखना है, बट हमें टेक्स्ट में लिखना है। तो मैं कुछ सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने B2 से लेके B7 सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके इसको मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल दिया। अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखूंगा तो देखिए वो लेफ्ट हैंड हो रहा है अपने आप। करेक्ट। अगर मैं इसका सम करता हूँ नीचे तो देखिए इसको सम में ले ही नहीं पाएगा ये वैल्यू, या तो वैल्यू एरर देगा, सम लिखा हुआ आ जाएगा। देखा 0 आंसर आ रहा है इसका, जबकि ये टेक्स्ट है सारे, बिकॉज मैंने इसको टेक्स्ट में बना दिया। अगर मैं इसको टेक्स्ट की जगह नंबर कर दूं और अगर मैं सम लगाता तो ये सम लगा देता। ठीक है, तो 789 आप देख पा रहे होंगे, 798 आ रहा है यहाँ पे अभी, और यहाँ पे 0 आ रहा है, बिकॉज ये जो डेटा है ये हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट में फॉर्मेट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी डेटा टेक्स्ट में फॉर्मेट हो गया, कई बार हमारी रिपोर्ट आती है, बैंक की रिपोर्ट आती है, या फिर एसएपी से डेटा आता है, या फिनाकल से डेटा आता है, या किसी सॉफ्टवेयर को जो ईआरपी हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली कस्टमाइज ईआरपी है। हो सकता है कि वो आप जो चाहते हैं उस फॉर्मेट में आपको डेटा ना दे। तो कई बार मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम आता है, कई लोग पूछते हैं सर ये जो है ये लेफ्ट में आ रहा है, ये हमारा टेक्स्ट बन गया,
अब हम इसमें कोई भी न्यूमेरिकल जो भी एक्टिविटी में करनी वो नहीं कर पा रहे, तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करें? अब इसको मैं यहाँ पे जाकर के नंबर कन्वर्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट की जगह। अब आप देखिए यहाँ पे नंबर कन्वर्ट कर अगर हम कर देते हैं तो भी 0 का 0 ही बचा है, इसमें कुछ भी देखो अभी चेंजेस नहीं आए, सब मेरा वही है, अभी भी 0 है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। करेक्ट, बिकॉज अभी भी टेक्स्ट ही समझ रहा है, जबकि देखिए यहाँ पे देखेंगे तो नंबर दिखेगा, जहां मेरा कर्सर है वहां देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं अभी 120 इस सेल पे हूँ, यानी B4 पे मैं हूँ। B4 पे अगर आप देखेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो नंबर दिखेगा आपको, जबकि मैंने इसको नंबर बना दिया है, उसके बावजूद ये अभी भी कैलकुलेशन में नहीं ले रहा। इसका मतलब यहाँ कुछ एरर है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये पहले इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज डेटा स्ट्रक्चरिंग करना ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को करने से पहले। अगर मैं इसको डेटा को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, अब इसको मैं टेक्स्ट टू कॉलम यूज कर रहा हूँ डेटा पे जाके। यहाँ डेटा पे जाइए आप, और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन होता है एक। ये क्या करता है, आपका कोई भी चीजें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिसको बोलते हैं CSV फॉर्मेट, या आप ये मानिए RPT फॉर्मेट। RPT फॉर्मेट फिनेकल निकाल के देता है, उसको रिपोर्ट फॉर्मेट बोलते हैं। ऐसा कोई भी फॉर्मेट जो आपको मिला, और अगर वो नोटपैड पे खुल सकता है, आप क्या करिए, राइट क्लिक कीजिए और नोटपैड पे खोलिए। अगर उसमें कोई भी अजीब सा लैंग्वेज नहीं आ रहा, यानी बॉक्स नहीं बन के आ रहे, या होता है ना स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं कई बार किसी फाइल को खोलने पर नोटपैड पे, अगर नोटपैड पे वो कैरेक्टर नहीं आ रहे और उस डेटा को आप देख पा रहे हैं नोटपैड पे, इसका मतलब उसको एक्सेल में आप खोल पाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम से। ठीक है, अगर उसको SKI फॉर्मेट बोलते हैं। अगर SKI फॉर्मेट में आपका डेटा है तो आप उसको खोल पाएंगे, अगर आप वो SKI फॉर्मेट में नहीं तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते एक्सेल में। तो आपका कोई भी फॉर्मेट आया हो, आप उसको नोटपैड पे रन करके देखिए, अगर आपका वो डेटा रीडेबल है, आप उसको पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए वो SKI फॉर्मेट में है, तो आप उसको एक्सेल पे खोल पाएंगे। ठीक है, अभी मैं टेक्स्ट टू कॉलम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको डेटा में जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाइए, यहाँ पे डिलिमिटेड करके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में बदल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुझे टैब से इसको सेपरेट नहीं करना, मुझे सेमीकोलन सेपरेट नहीं करना है, मुझे सेपरेशन नहीं करना, मुझे इसका कंटेंट बदलना है सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्मेट आ रहा है, इस जनरल फॉर्मेट को मैं यहाँ से चेंज करके और इसका डेस्टिनेशन बदल के, और मैं चेंज कर रहा हूँ C2 पे। करेक्ट, और अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको फिनिश। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जनरल फॉर्मेट लिया, जनरल फॉर्मेट लेने के बाद डेस्टिनेशन C2 कर दी, जो B2 था उसको मैंने C2 कर दिया। अब मैं यहाँ से फिनिश कर रहा हूँ, नाउ सी। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डेटा था वो टेक्स्ट से बन करके और नंबर पे आ गया है। अभी यहाँ देखेंगे तो आपको नंबर दिखेगा। करेक्ट, तो अब ये नंबर टोटल भी कर पा रहा है, देखो F2 दबा रहा हूँ मैं, ये टोटल हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो देखिए नीचे सब मेरा चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको 1000 कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए नीचे चेंज हो रहा है सब कुछ। तो हमें क्या करना होता है, कई बार इस वाले डेटा को, जो हमारा टेक्स्ट में डेटा है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना होता है, और चूंकि नंबर में इसको यहाँ से कन्वर्ट करते नंबर कन्वर्ट नहीं होता। यहाँ आप होम में जाके देखेंगे तो हम लोग देख पाएंगे द नंबर फॉर्मेट इज फॉर्मेटेड एज नंबर, बट दिस इज नॉट नंबर, बट दिस इज नंबर। ये जनरल फॉर्मेट दिखा रहा है बट ये नंबर में है, क्योंकि राइट अलाइन दिख रहा है आपको साफ साफ। और जब आप राइट अलाइन कर देंगे इसका मतलब आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। यहाँ पे सम लग सकता है, यहाँ पे सम नहीं लग सकता। करेक्ट, तो ये मेरे को टिप एक आपको इसलिए बतानी थी बिकॉज जब हम प्राइवेट टेबल बनाते हैं या कभी भी हम लोग, जैसे आपको बताऊं, जब हम लोग एक्साइज पे काम करा करते थे ना, एक्साइज ड्यूटी जब चला करता था, तब फॉर्मेट हमारे पास ऐसे आते थे, वो बोलता था कि आपकी डेट को आप टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड कीजिए। अब डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट अपलोड करने में क्या प्रॉब्लम आती थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डेट मैं लिख देता हूँ, अभी मैं आज की डेट लिख देता हूँ एक बार के लिए। ये आज की डेट है मेरे पास। ठीक है, इस डेट के अंदर मेरे पास जो फॉर्मेट है वो DDMMYY है। करेक्ट, इसका है DDMMYY। अगर मेरे को इसको MMDDYY करना हो, अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई सॉफ्टवेयर होते हैं वो MMDDYY पे करते हैं, बिकॉज उनका जो प्लेटफॉर्म होता है और जो एल्गोरिदम होता है वो क्या होता है, US सपोर्ट जहां भी होता है ना, US से सपोर्ट अगर हम लेते हैं तो US का डेटा है वो MMDDYY है, हमारा फॉर्मेट है वो DDMMYY है। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको अभी ये जो डेट है इसका मतलब होता है कि मैं 8/11 की बात कर रहा हूँ या 11/8 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको समझ में आएगा मैं 11/8 की बात कर रहा हूँ, यानी आज 11 तारीख को 8वां महीना है। इसका मतलब मैं कौन से फॉर्मेट पे हूँ, मैं अभी हूँ MM और DD और YYYY पे। ये US फॉर्मेट है, पर इंडिया में ये नहीं चलता। इंडिया में चलता है, तो मुझे चेंज करना होगा। मैं क्या चेंज करूंगा, मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ से ये मेरा कस्टम फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट सेल में अभी नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज ये सब आपको आता होगा, ये मैं मानता हूँ, और नहीं आ रहा होगा तो इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए टाइप पे जाएंगे तो यहाँ MD और YYYY शो कर रहा है।
इसको अगर यहाँ से चेंज आप कर देंगे तो मैं इसको बोल देता हूँ dd स्लैश और MMM 3 बार लगा रहा हूँ बिकॉज मुझे दिखाना है कि ये टेक्स्ट में कैसे दिखता है, और YYYY। अब देखिए यहाँ 11 अगस्त लिखा हुआ आ रहा है जो मेरी एक्चुअल डेट है। तो अगर मुझे इसको पूरा लिखना है फॉर एग्जांपल तो मैं एक M और बढ़ा देता हूँ, तो ये देखिए आप, तो यहाँ पूरा अगस्त लिखा हुआ दिखेगा आपको। अगर मुझे आज का डे भी निकालना है यहाँ पे कि आज कौन सा डे है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे करके। अगर मुझे यहाँ पे डे भी निकालना है मेरा, ये देखिए, तो आज ट्यूसडे है और 11 तारीख है आज। तो आप इस फॉर्मेट में फायदा क्या होता है, बेसिकली जो हमने अभी जो हम सेल्फ कस्टम फॉर्मेटिंग से जो भी कर रहे हैं ना, उससे होता है कि आप कैलकुलेशन कर पाओगे। अगर आप हाथ से डेट लिख दोगे ना तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप देखिए इसको, अगर मैं थोड़ा इसकी कॉलम की विड्थ अगर मैं एनलार्ज कर रहा हूँ, देखिए तो आप देखिए ये राइट अलाइन हो गया अपने आप, इट मींस दिस इज अ नंबर। और ये अगर मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूँ तो देखिए ऐड करके और नेक्स्ट डेट ले लेगा, और नेक्स्ट डेट मेरी आ रही फ्राइडे की 21 अगस्त। इट मींस अगर मैं यहाँ पे 20 डेज ऐड कर दूंगा तो 10 डेज वाली डेट ये ले लेगा यहाँ पे। सी मंडे को 31 अगस्त आएगी 20 डेज के बाद में। अगर इसको 5 डे कर दूंगा तो 5 डे ले लेगा ये। अगर इसको मैं हाथ से टाइप करता तो ये सब वो नहीं कर पाता, तो मैंने कस्टम फॉर्मेट से इसको एडिट किया है। तो कस्टम फॉर्मेट जाके आप एडिट कर सकते हो। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप कौन से फॉर्मेट में जाना चाहते हैं। जब आप रिपोर्ट को लेके आएंगे तो हो सकता है वो MMDDYY फॉर्मेट में हो, तो हमें टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है। और उसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम करता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे जाएंगे, डिलिमिटेड पे आगे जाइए आप, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है ये डेट का फॉर्मेट का, ये वाला यहाँ पे शो हो रहा है MDY। इट मींस ये मंथ लेगा, फिर डेट लेगा, फिर ईयर लेगा। अगर आपको कोई चेंजेस करने तो यही चेंज कर लीजिए आप। अगर आपने डेटा इंपोर्ट कर लिया और ये चेंजेस नहीं किए तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि है ना वो डेटा जो है वो स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा, और जब आप उससे कुछ भी काम करना चाहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए आपको किस फॉर्मेट में लेके जाना है। इसलिए मैं कभी नंबर लेके आता हूँ ना, जैसे आपको अगर रिपोर्ट से नंबर लेना है बट वो नंबर नहीं है, वो वेंडर कोड है, तो आप हमेशा टैक्स यूज कीजिए उसके अंदर, तो आपको वीलुकअप लगाने में बहुत आसानी रहेगी। तो हमेशा याद रखिए जनरल, टैक्स, डेट, ये आपके काम आते हैं। ये लास्ट वाला ऑप्शन तो ये है कि आपको अगर कोई इंपोर्ट ही नहीं करना कॉलम तो आप यहाँ से हटा दीजिए, वो इंपोर्ट नहीं होगा कॉलम। तो जब भी हम बैंक ऑडिट पे जाते हैं या किसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है हमको कई बार। तो अगर आपको कोई डेटा दिख रहा है और आपको लग रहा है वीलुकअप नहीं लग रहा जबकि दोनों डेटा मैच कर रहे हैं, तो एक बार आप उस डेटा पे जाइए और उसके अंदर जाकर के टेक्स्ट टू कॉलम पे जाकर के टेक्स्ट पे जाकर के और उसको फिनिश कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, प्रोसेस को सिंपल चलाना, फिनिश करके छोड़ देना है, वो अपने आप उसको अरेंज कर देगा और आपका जो डेटा फॉर्मूला जो नहीं लग रहा था वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो ये कुछ टिप्स थी जो मुझे आपको इसलिए बतानी थी बिकॉज स्ट्रक्चर डेटा जब तक नहीं होता तब तक हम डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते। मतलब एक बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है, वो बहुत कॉमन कंसेप्ट है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO कॉन्सेप्ट पे हमारा सिस्टम चलता है। कोई भी आप सिस्टम यूज करते हैं तो गार्बेज इन गार्बेज आउट पे चलता है। तो जैसा आप डालेंगे ना वैसा वो रिटर्न करेगा। अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर नहीं है तो उसके लिए डेटा वैलिडेशन यूज करना चाहिए। डेटा वैलिडेशन अगेन एक फॉर्मेट है जो आपको डेटा कैसे एंटर होता है, जब आप डेटा इनपुट लेते हैं तो डेटा कैसे आना चाहिए, मैं उसको एक बार दिखा देता हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन टूल। आपको उसमें क्या डालना है, आपको कहाँ से उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, यहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो डेटा को। कई बार ऐसे लोग शीट बनाते हैं जो लोग बार बार गलतियां करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केस आया था, तो एक अकाउंटेंट था, वो काम करता था किसी एयरलाइंस कंपनी में जो डोमेस्टिक एयरलाइंस ही देखा करती थी। तो वो डोमेस्टिक एयरलाइंस की टिकट कराया करते थे। तो क्या होता था कि वो जब भी डेस्टिनेशन डालते थे तो एक ना आपके एयरपोर्ट फिक्स होते हैं कि कहाँ से आपके डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो फिक्स है इंडिया में, कहाँ कहाँ है उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है, और डेस्टिनेशन भी आपके पास होगी बिकॉज एयरपोर्ट की लिस्ट आपने पूरी उठा ली। अब क्या होता है कि जब वो स्पेलिंग लिखता था, वो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर था वो स्पेलिंग हाथ से टाइप करता था, तो जब भी वो हाथ से टाइप करता तो प्रॉब्लम ये आती थी कि वो गलत डेटा एंट्री ले लेता था। फॉर एग्जाम्पल क्या कर लेता था, वो गुजरात की स्पेलिंग दो तरह से लिखता था, GUJARAT और GUJRAT। तो इस तरह से आपका डेटा क्या 2 बार गुजरात आ गया। अब त्रिवेंद्रपुरम की स्पेलिंग वो 8 तरह से लिखता था। त्रिवेंद्रपुरम की स्पेलिंग आप लिखने बैठोगे तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा त्रिवेंद्रपुरम कैसे होता है। तो त्रिवेंद्रपुरम का स्पेलिंग अगर हम लिखेंगे तो हमको 8 तरह से चेक करना पड़ेगा, तब जाके हम त्रिवेंद्रपुरम की स्पेलिंग सही लिखेंगे। तो ऐसे बहुत सी हमारे ये ना डोमेस्टिक फ्लाइट के अंदर जब वो डेटा बनाते थे तो उसको पहले ठीक करने में टाइम लग जाता था बिकॉज स्ट्रक्चर नहीं था वो। तो अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ से लिस्ट लगा दें, उसके अंदर लिस्ट का ऑप्शन हमारे पास होता है, आप कोई भी डेटा आप यहाँ डाल दो और लिस्ट में उसको डाल दोगे, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ डेटा डाल के ये आपका है ना डेटा इंपोर्ट भी कर लेता है। जरूरी नहीं आप यहीं से लिखो, मैं अभी चीज लिख के दिखा रहा हूँ आपको। राम श्याम, ये बहुत नॉर्मल है तो आपने देखा ही होगा, मैं फिर भी बताता हूँ किसी को नहीं पता होगा तो। ये मैंने 3 नाम लिखे हैं इसके अंदर, और इस वाले
कॉलम पे मैंने डेटा एडिशन लगाया है, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे 3 ही चीज आप डाल सकते हो। अगर आपने एक नया नाम लिखा जो मोहन है तो ये एरर दे देगा। तो जब भी आप डेटा एंट्री करवाते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा डेटा का स्ट्रक्चर वो वे में अगर एंट्री नहीं हो रही है तो उसको ठीक करने में हमारा बहुत टाइम चले जाता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम डेटा एनालिसिस पे जाते हैं या डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम उसकी रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, तो रिपोर्टिंग से पहले आप डेटा को चेक करो, क्या पता कोई डेटा छूट गया हो। तो हमें वो चेक करना बहुत जरूरी है। एरर बहुत ज्यादा ऐसी बहुत तरह की एरर्स होती है जो हमको समझ में नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं कोई नंबर फॉर्मेट यहाँ लिख रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये एक नंबर मैंने कुछ लिखे यहाँ पे और ये नंबर मैंने टाइप कर दिए और मैंने यहाँ सम लगा दिया। फॉर एग्जांपल ये सम लग गया, लेकिन मैंने बीच में क्या किया, इस वाले सेल पे जाके क्या किया, मुझे लगता है इसको टैग कर देना चाहिए बिकॉज मुझे लगता है कुछ मैनिपुलेट करना है मुझे। अभी 14,108 मेरा क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है। मैं होम पे जा रहा हूँ, इसको जाके मैंने टेक्स्ट बदल दिया यहाँ से, करेक्ट, और डेटा को दोबारा टाइप किया 1000 से। अगर मैं यहाँ 1000 लिखता हूँ तो 1481 जो है वो चेंज होना चाहिए। वो चेंज होके क्या हो गया, 1258 हो गया। यहाँ तक ठीक था। अब मैं इसको वापस चेंज कर रहा हूँ, आप देखिए अब चेंज होना बंद हो गया। मैं इसको छुपाने के लिए क्या करता हूँ, इसको राइट अलाइन कर देता हूँ और इस एरर को भी इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि ग्रीन ग्रीन दिख रहा है साइड में आपको, इसको मैंने इग्नोर एरर कर दिया। अब आप ये बहुत कम डेटा है, आपको बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, 4-5 सेल, इसलिए आपको पता लग जाएगा। पर अगर इसमें मैं कुछ भी मैनिपुलेट करके 666 लिखता हूँ तो देखिए नीचे जो 1258 है इसमें चेंज नहीं आएगा। ये एरर इसलिए शो हो रही है बिकॉज मैंने यहाँ पे एरर जो है वो ऑप्शन एक्टिवेट कर रखा है। अगर आप फाइल में जाके ऑप्शन में जाके एरर्स को अगर ऑफ कर देंगे ना तो आप कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे कोई एरर आ रही है। यहाँ पे एरर का प्रॉब्लम होता है, फॉर्मूला में जाकर के आप एरर जो होती है, यहाँ पे एरर ऑप्शन होते हैं, ये आप ऑफ कर दीजिए यहाँ से, तो एरर देना बंद कर देगा वो। अगर इसने एरर देना बंद किया तो आप समझिए यहाँ पे कोई भी डेटा मैनिपुलेटेड है, आपको पता ही नहीं चलेगा डेटा मैनिपुलेटेड है। आप यहाँ पे लिख देंगे 500, वो सब में लेगा ही नहीं। नीचे 1558 आ रहा है, देखो आप इसको F2 दबाओ। अगर आप इसको F2 दबाएंगे, वेट अ मिनट, मेरी हेल्प खुल गया था एक मिनट। हाँ, तो देखिए अगर यहाँ पे आप F2 दबाते हैं अपना, तो देखिए आप ये सम के अंदर दिखा पूरा रहा है, पर ये वाला जो सेल मैं बता रहा हूँ H5, ये इसको ले नहीं रहा है इसके अंदर। और अब सम देखो पूरा, मैं 1 लाख लिख देता हूँ इसके अंदर, देखिए आप, पर सम मेरा 1.58 ही आज भी। तो इसको निकालने के लिए फिर एक तरीका होता है। अगर ये सेल तो अभी हमारे पास 8 है तो हम देख पा रहे हैं, अगर ये मान लीजिए 80,000 रोज होती तो आपको निकालना मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं टी। फॉर्मूले का नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टी। ये टेक्स्ट को बाहर निकाल देता है जो भी डेटा होता है। अगर मैं यहाँ पे टी फॉर्मूला यूज करता हूँ, देखिए वैल्यू मेरी कुछ भी नहीं आई बिकॉज 556 जो है ये टेक्स्ट नहीं है। पर अगर यही डेटा मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ और कंट्रोल डी दबा देता हूँ तो जो टेक्स्ट होगा वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए सब जगह सेम फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूले दिखाता हूँ सारे। ये देखिए ये शीट आप देखेंगे तो इसमें मैं फॉर्मूले दिखा रहा हूँ सारे आपको। ये फॉर्मूला हर जगह लगाया मैंने, पर कहीं पे भी आंसर जो है वो मेरा नहीं आ रहा था, सिर्फ यहाँ पे एक आंसर आ रहा था 1 लाख रुपीज। मैं वापस दिखाता हूँ आपको। सी, यहाँ सब जगह फॉर्मूला है। आप देखो फॉर्मूला बार ये होती है मेरी फॉर्मूला बार। यहाँ देखिए आप एक बार, यहाँ देखेंगे तो आपको फॉर्मूला दिखेगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, टी फॉर्मूला लगा हुआ है, पर यहाँ पे डेटा कुछ भी नहीं बिकॉज ये टेक्स्ट नहीं है। नीचे जाएंगे तो यहाँ भी टी फॉर्मूला है पर टेक्स्ट नहीं है, इसलिए कुछ नहीं आया। पर यहाँ पे टी फॉर्मूला है लेकिन ये टेक्स्ट है, तो देखिए यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको नंबर कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ से, जो मुझे पता ही नहीं था पहले, अब पता चला मुझे, तो मैं इसको नंबर कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से हट गया वो और इसने नंबर कन्वर्ट कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ डेटा को छुपाने के लिए या हमें लगता है कोई चीज़ मैनिपुलेट करनी है, तो आपको ये सब डेटाबेस में पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूला चीज़ें हमें ला के दे सकते हैं। ऐसे बहुत से फॉर्मूला हैं, लेकिन क्या होता है कौन सा फॉर्मूला कब काम आएगा डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है या हम कौन सा काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कई बार कब काम आता है कि आपको लगता है कि आपको एनपीए दिखाने, और वो नीचे वाला फिगर तो आपको ज्यादा दिख रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पे 2 लाख के एनपीए आ रहे हैं, और आपने बोला कि सर मेरे 3 केस ऐसे थे जो एनपीए थे, वो तीनों केस यहाँ मिलेंगे आपको, पर उनका सम यहाँ नीचे नहीं आ रहा होगा। अभी एक्सेल बहुत एडवांस हो गया है, तो ये आपको एरर भी देता था। अगर 2007 पे आप काम कर रहे हो या 10 पे काम कर रहे हो तो एरर आना ही बंद हो जाती थी। उसके बाद तो खैर इसने बहुत चेंजेस ले लिए हैं अभी, तो ये बहुत चीजें खुद ही पकड़ लेते हैं। फिर भी अगर हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ा है जो ओल्ड वर्जन है एक्सेल का, बिकॉज सब लोग 2016 में भी यूज कर रहा हूँ, 2019 भी हम लोग यूज कर लेते हैं, पर 19 के ऊपर फिर 365 यूज करना होता है, ऑफिस 365 होता है, वो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड चलता है। तो भी 2019 तक आ चुका है, उसमें बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो चुकी है। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। अभी मैं शीट 1 पे आ रहा हूँ जो मेरी डेटा शीट है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ पाइवेट टेबल है,
देखिए एक्सेल में क्या होता है कि दो तरह की चीजें होती है, एक होता है डेटा इनपुट करवाना, दूसरा होता है फॉर्मुलेट करना जिसको फॉर्मूला लगाना बोलते हैं, और लॉजिकली चीजों को प्रूव करके और अपना एनालिसिस निकालना। तीसरा होता है प्रेजेंटेशन के काम में लेना और डेटा एनालिसिस करना। तो डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल में बहुत बहुत अच्छी चीज है, वो है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल जब भी आप यूज करोगे तो पिवट टेबल जो है आपको एक ऐसी चीज निकाल के देगी जो आप मतलब अगर आप खुद करने बैठते आप उसमें बहुत टाइम लग जाता। तो पिवट टेबल पे भी आ रहा हूँ। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये सब हमको आता होगा, लेकिन हो सकता है आगे जाके आपको लगे कि शायद ये चीज नहीं सीखी हमने। तो आप एंड तक बने रहिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग कहाँ तक जाएंगे। बिकॉज मुझे पता नहीं कौन सा किस लेवल का स्टूडेंट अभी यहाँ पे बैठा है, हो सकता है पिछले वाला सेशन भी उसको लगा हो कि बहुत फास्ट चले गया, पर ये मैं बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ बिकॉज वो कंटेंट मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि हमें डेटा स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है पहले। तो जो डेटा इनपुट आप कर रहे हो तो आप उसको समझो कि उसका फील क्या है, उसका रिजल्ट हम क्या देने वाले हैं। तो ये स्ट्रक्चर डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। पहले कॉलम में सेल्स पर्सन है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपकी स्क्रीन पे देख पाओ आप इसको। या सेल्स पर्सन है, उसका ऑर्डर आईडी है, मतलब किसी एक ऑर्डर से इन्होंने आईडी है, उससे इन्होंने माल परचेज किया होगा। ये सेल्स पर्सन ने जो प्रोडक्ट बेचे हैं मार्केट में, उसका ऑर्डर आईडी ये है। तीसरे कॉलम में हमें डेट मिल रही है जो 2/2/2013 है। हमें पता नहीं फॉर्मेट कौन सा, DDM है, YY की ये कौन सा वाला फॉर्मेट है, पर आप ध्यान से देखोगे तो तीसरे रो में आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे 10/15 आ रहा है। इट मीन्स ये MMDD YY फॉर्मेट है। बिकॉज अगर क्योंकि 15 मंथ नहीं हो, ये मंथ हो सकता है, जो मंथ होता है वो 15 कभी नहीं हो सकता, तो ये 10-15 कभी नहीं हो सकता अगर ये DDMM YY फॉर्मेट होता। तो ये MMDD YY फॉर्मेट है। इसके बाद आप देखो शिपर कंपनी कौन सी उन्होंने यूज की वो आ रहा है, फिर प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने बेचा। तो यहाँ देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। बेसिकली क्या है, ये कुछ हम फ्रांस की कुछ रेस्टोरेंट का मेन्यू है ये बेसिकली, और वहाँ के कुछ ऐसी चीजें जो आपको शायद समझ में नहीं आएगी। तो इसमें कुछ चाय आपको समझ में आएगा, कुछ चीजें शायद आपको समझ में आ रही होगी, बाकी समझ में नहीं आ रही होगी। ये बेसिकली ये पहला वाला वर्ड जो आपको समझ में आ रहा है मटन है किस तरह का। तो ये कुछ रेस्टोरेंट का डेटा है। उसका यूनिट प्राइस है कितने रुपए में वो बिकता है, हमने इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। आप इसका रेट ये मत मानिए कि ये रेट इसका है, हो सकता है ये अमाउंट पाउंड में हो, हमने रुपये में कन्वर्ट कर लिया है, रुपी सिंबल यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी लिया और कितना अमाउंट हमारे पास आया, करेक्ट। ये डेटा का स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ सकता है, हमको कौन क्या मांग सकता है, हमारा जो मैनेजर है या हमारा जो क्लाइंट है या जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे जो सर हैं वो क्या चाहते हैं इस डेटा से, वो डेटा एनालिसिस हमें करके देना है। तो डेटा एनालिसिस हमें क्या करके देना है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। एक्सेल आपका टूल है, ये आपकी स्किल है, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करेगी डेटा एनालिसिस में। पर डेटा एनालिसिस क्या करना है ये नहीं बता सकता, ये इसका काम नहीं है। तो डेटा एनालिसिस, डेटा से क्या एनालिसिस करना चाहते हो आप, ये तो आपको कॉल लेना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये डेटा कैसे कर देगा, डेटा को ये कैसे निकाल के देगा, वो अपन सीख लेते हैं। तो मैं आपको पिवट टेबल बता देता हूँ बिकॉज हम लोग के बहुत काम की चीज है। तो इसमें मैं कितने लोग हैं अभी मुझे नहीं पता कि टोटल मैं नंबर ऑफ एंट्रीज देख रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखिए मैं आ गया हूँ 100 रो पे। इट मीन्स एक हेडिंग है इसमें और 99 रोज है इसमें, ठीक है। तो 99 रोज का हमारे पास डेटा आ गया और टोटल मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर विल्टर लगाना आपको आता होगा, वो मैं नहीं जा रहा वहां पे, मैं आपको पिवट टेबल पे ही एक्सटेंड करके दिखाता हूँ चीजें। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इंसर्ट पे जाओगे तो यहाँ पे पिवट टेबल मिलेगी आपको। आप शॉर्टकट से भी आ सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो शॉर्टकट से आ जाओ, चाहो तो आप सीधे आ जाओ। तो आप इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट पे पिवट टेबल है। पिवट टेबल पे मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ से कि शॉर्टकट से जाऊंगा तो आप लोग देख नहीं पाओगे कहाँ से आया ये। तो मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ कि आप इंसर्ट पे जाइए, इस पे आप यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए पिवट टेबल को। तो यहाँ सबसे पहले बताता है कि सर आप ये बताइए कि हमारा टेबल का रेंज क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा डेटा है वो 100 तक जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे 100 शो कर रहा होगा, ठीक है। और शुरू कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है ए से, A1 से इसने शुरू किया, नहीं A1 ये वाला सेल है जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, ये जो प्लस साइन आपको दिख रहा होगा, मैं मूव कर रहा हूँ कर्सर को, देखिए। तो A1 सेल पे मेरा डेटा था और ये जा रहा है I100 तक, और ई के बाद इधर जो मेरा कॉलम जा रहा है वो आई तक है, ठीक है, इसलिए I100 ये शो कर रहा है, ये डन यहाँ तक, ठीक है। अगर हमें लगता है कोई एक्सटर्नल सोर्स हमें यूज करना है तो हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं पहले। कनेक्शन का मतलब क्या होता है, हमारा DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको बोलते हैं। आपका जो टैली है ना, उस टैली का भी एक डेटाबेस है। अगर आपको लगता है कोई ऐसा डेटा है जो आप टैली से नहीं देख पा रहे हो, आपको लगता है कि मेरे को ऐसे क्या ना, मतलब वेंडर कोड निकालना है फॉर एग्जांपल, और आपको लगाना है कि आपको टैली से ऐसा डेटा निकाल के देना है कि मुझे सारे वेंडर आ जाएं, उनके GST नंबर आ जाएं और उनकी एड्रेस आ जाए, ऐसा मेरा वेंडर का डिटेल बाहर आ जाए। तो टैली में ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं सीधा सीधा, और उसके डेटाबेस से आप निकालना चाहोगे तो आप कनेक्शन उसको एस्टेब्लिश करो और यहाँ से आप निकाल के पिवट टेबल पे सीधे ला सकते हो।
और नहीं तो फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो डेटा को। वो इंपोर्ट करने का तरीका दूसरा होता है, वो डेटा में इंपोर्ट करके ऑप्शन है, वहां से आप जाकर के टैली का डेटा भी ला सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं कनेक्शन आपको यहाँ पे एस्टेब्लिश करके भी नहीं बता रहा, बिकॉज यहाँ पे वो कनेक्शन जो हमारे बने हुए हैं वो किसी और डीबीएमएस से बने हुए हैं। तो आप अभी सिर्फ ये समझिए कि अभी जो डेटा हमारे पास उससे हम काम कर रहे हैं, हम लोग एक्सटर्नल कनेक्शन यूज नहीं कर रहे, मतलब कनेक्शन से डेटा नहीं उठा के ला रहे। डेटा कहाँ पे आपको फैच करके डालना है, तो बता रहा है यहाँ पे चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट आर बी प्लेस्ड। कहाँ पे आप रिपोर्ट को प्लेस करना चाहते हैं, इसी डेटा शीट पे डालना चाहते हैं कि किसी दूसरी शीट पे ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप एग्जिस्टिंग शीट पे चाहते हैं तो देयर इज ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो यू कैन पुट लोकेशन हेयर। लोकेशन हेयर मतलब आपको यहाँ पे जाके सेल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऑलरेडी यहाँ पे टेबल, मतलब टेबल यहाँ पे आ नहीं पाएगी बिकॉज डेटाबेस यहाँ पे है, तो वो एरर दे देगा आपको। तो मैं न्यू वर्कशीट पे लेके जा रहा हूँ तो अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। आप चाहो तो डेटा को सिर्फ डेटा मॉडल पे ऐड कर सकते हो। डेटा मॉडल मतलब क्या होता है, एक्सेल का एक डेटा मॉडल मतलब यहाँ पे डेटा मॉडल जो होते हैं वहाँ पे डेटाबेस हमारे स्टोर होते हैं, आप वहां से रिवर्ट करके ले सकते हो। आपको बार बार नई जगह से लाने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार ऐड कर दो डेटा मॉडल में, फिर जब भी आपको एक्सट्रैक्ट करना हो वापस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें, यहाँ से हटा रहे हैं, सिर्फ न्यू वर्कशीट करके और ओके कर रहे हैं। जैसे मैंने ओके क्लिक किया, मैंने नई वर्कशीट बोला था तो मेरा डेटा नई वर्कशीट पे आ गया, करेक्ट। तो अब जो नई वर्कशीट है मेरी, उस वर्कशीट पे मैं हूँ, और यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना पिवट टेबल, देखिए बाहर क्लिक करेंगे ना तो पिवट टेबल जो है वो हाइड हो जाएगी, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको, इसके अंदर की तरफ, तो पिवट टेबल का जो ऑप्शन है वो इधर एक्टिव हो जाएंगे। इसको पिवट टेबल फील्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 तरह के फील्ड हमारे पास है पिवट टेबल में, करेक्ट। तो 4 फील्ड कौन कौन से आप देखिए, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहला जो फील्ड है वो है हमारा फिल्टर्स का है, दूसरा फील्ड है वो कॉलम का है, तीसरा फील्ड है वो रोज का है, और चौथा फील्ड है वैल्यू का है। तो ये फील्ड है, ये सॉरी ये फिल्टर्स है, पहला वाला फील्ड ये फिल्टर्स है, फिल्टर के बाद कॉलम है, कॉलम के बाद हमारे पास रोज है, रोज के बाद हमारे पास वैल्यूज है, और दीज आर और फील्ड्स। जो भी डेटा आपने वहां देखा था ना, उनके हेडिंग जो आपने देखे, अगर वो स्ट्रक्चर है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे डेटा हेडिंग आ जाएगी आपकी, करेक्ट। अब जिसको भी आप क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है मेरे सेल्स पर्सन है कितने। मैंने क्या देखा, मैंने वहां पे देखा कि वहां पे हमारे पास क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे मेरे सारे जितने भी हमारे वो थे वो आ गए सेल्स पर्सन, करेक्ट। मैं एक बार इसको जूम करता हूँ, ये देखिए रो लेबल आ रहा है, मतलब रो के ऊपर लेबल लेनो लिखा है, अब चेंज कर सकते हैं ऑप्शन में जाकर के। अभी एक बार ये मैं बता रहा हूँ, इसका एंड्रू, एनी, ऐसे करके कुछ लोग हमारे पास आ गए। बेसिकली दीज आर आवर टोटल सेल्स पर्सन एंड द काउंट इज 9। तो वी हैव 9 सेल्स पर्सन इन आवर डेटाबेस, करेक्ट। मुझे अगर ये नहीं पता करना, मुझे देखना है कि नहीं, मेरे को पता करना है प्रोडक्ट कितने हैं मेरे पास, तो मैं प्रोडक्ट नेम पे जाके क्लिक करूंगा, तो देयर आर प्रोडक्ट नेम्स। तो प्रोडक्ट नेम देखिए कितने टोटल, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं ग्रैंड टोटल को रिमूव हटा रहा हूँ एक बार। तो नाउ सी, यू कैन सी हियर देयर 55 प्रोडक्ट्स राइट नाउ इन द शीट, यानी 55 तरह के प्रोडक्ट हम लोग ये सेल्स पर्सन बेच रहे थे अभी, और टोटल 9 सेल्स पर्सन हमारे पास हैं। और हमें देखना है कितनी शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी भी यहाँ दिख जाएगी आपको, दीज आर 3। तो देयर आर 3 शिपिंग कंपनीज हियर, जिसके थ्रू इन सेल्स पर्सन ने पूरा प्रोडक्ट जो है बेचा है, और 55 प्रोडक्ट उनके पास है, करेक्ट। अब हम इसमें देखते हैं, ये हमारे फील्ड हो गए। अब हम इसमें सेल्स पर्सन डालते हैं। ये देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे ना, ये अपने आप है ना बाय डिफॉल्ट किसी एक फील्ड में इसको ले जाएगा। अभी देखिए इसने इसको रो में डाल दिया। अगर इसको ड्रैग करके आप यहाँ से और अगर कॉलम में डाल देते हैं ना, तो कॉलम्स में चले जाएगा। सी द डिफरेंस। अभी डेटा रो में था, अभी डेटा हमारा राइट हैंड साइड देखो तो ये यहाँ पे चले गया कॉलम्स में। मैं वापस को रो में लेके आ रहा हूँ, करेक्ट। अब मुझे अमाउंट देखना है मेरा कितना अमाउंट किसने बेचा। उस डेटाबेस में आप निकालने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाता। अब मैं सिंपल क्लिक कीजिए, डेटा निकाल के दे देगा आपको। यानी किस पर्सन ने, मिस्टर एंड्रू ने टोटल 3111.6 इतना अमाउंट का जो प्रोडक्ट है वो बेचा है। तो ये अमाउंट है हमारे पास। इस अमाउंट के अंदर जो है वो इन्होंने प्रोडक्ट है जो बेचा है। और एक सेकेंड, वेट अ मिनट, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट बेचा, वो प्रोडक्ट हमारा कितना था, वो 3116 का प्रोडक्ट था। ठीक है। इसके बाद एनी जो है उसने बेचा। अगर मैं बताना चाहता हूँ कौन सा पर्सन ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा माल बेचा है अभी यहाँ पे, किसने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचा, तो लॉरा जो है उसका डेटा सबसे ज्यादा आ रहा है अभी। ठीक है। तो जो लॉरा करके जो पर्सन है, इन्होंने ना सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अभी बेचे हैं। फिर माइग्रेट है, माइग्रेट का डेटा देखिए आप यहाँ पे,
जब भी आप डबल क्लिक किसी पे कर देंगे ना, उसका डेटा अलग से शीट पे खोल के दे देगा ये। तो मैंने माइग्रेट पिकॉक पे क्लिक किया था, देखिए उसका डेटा इधर आ गया साइड में फैच होके अपने आप। अगर मुझे किसी भी डेटा को निकालना है बाहर, तो मैं उस पर डबल क्लिक कर दूंगा। मैंने एंड्रू पे डबल क्लिक किया, ये पूछेगा वो क्या क्या चाहिए इनमें से। देखिए पूछ रहा है आपको ऑर्डर आईडी भी चाहिए, आपको ऑर्डर डेट चाहिए, कैसे डेटा आपको सॉर्ट करके देना है। तो आप क्लिक करोगे वहां पर पहुंच जाएगा। अगर मैंने अमाउंट पे क्लिक किया, तो अमाउंट पे आकर डबल क्लिक करोगे तो अपने आप शीट बना के दे देगा पास में। तो ये देखिए एंड्रू का डेटा है और ये हमारा माइग्रेट का डेटा है, करेक्ट। अब इसमें और क्या कर सकते हैं वो देखते हैं अपन। ये मेरा डेटा था, ये एक शीट जो मैंने आपको समझाई वो है, ये शीट 2 है जहां हमारी पिवट टेबल चल रही है। ये शीट मैं वापस डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे काम की नहीं है अभी ये। आई डिलीटिंग द शीट जस्ट नाउ। सी नाउ वी हैव 9 सेल्स पर्सन और ये हमारा डेटा था। मुझे पता करना है कि मुझे ये तो पता चला कि है ना कितना अमाउंट इन्होंने बेचा, मुझे पता करना है कि एक्चुअली इनका काउंट कितना था जिन्होंने बेचा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने थे इनके। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाके देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा समराइज्ड वैल्यू बाय। अभी यहाँ पे सम क्लिक है, मैं इसको यहाँ से चेंज करके काउंट पे जा रहा हूँ। जैसे मैं इसको काउंट पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे काउंट आ गया, यानी 8 काउंट आ रहे हैं मेरे एंड्रू फुलर का डेटा पे। यहाँ 4 काउंट आ रहा है, यहाँ 6 काउंट आ रहा है, 21 काउंट आ रहा है, 24 काउंट आ रहा है, करेक्ट। अब अगर मुझे चाहिए सम, तो मैं इसको भी सम कर, इसको ही सम करता हूँ बार बार। इसी को मैं काउंट कर पा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं मुझे सम भी चाहिए काउंट भी चाहिए, कोई बात नहीं। आप अमाउंट को ड्रैग करके एक बार और वैल्यूज में डाल दीजिए, आपका अमाउंट 2 बार आ जाएगा। एक बार आपका सम ऑफ अमाउंट आ रहा है, एक बार सम ऑफ अमाउंट 2 आ रहा है। मैं इस वाले अमाउंट को काउंट करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे जाइए और समराइज वैल्यू बाय पे जाकर के इसको काउंट में चेंज कर दीजिए। नाउ सी, नाउ यू हैव काउंट हेयर एंड यू हैव अमाउंट हेयर। मतलब एंड्रू फुलर के टोटल ट्रांजेक्शन जो थे वो 8 थे, जिस 8 ट्रांजेक्शन में से उसने टोटल कितना अमाउंट है वो 31 और 11.6 का डेटा उन्होंने इसमें अमाउंट बेचा है। सेम आप अगर इधर लॉरा की बात करेंगे ना, तो लॉरा के देखिए ट्रांजेक्शन कितने हैं, 21 ट्रांजेक्शन टोटल इसके हैं, इसमें इसने इतना माल बेचा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि ये डिफरेंस देखिए आप, यहाँ पे 8 ट्रांजेक्शन से डेटा आ रहा है, यहाँ पे 24 ट्रांजेक्शन से डेटा आ रहा है। सबसे ज्यादा डेटा जो ट्रांजेक्शन है वो किसके हैं, अगर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन की हम बात करें ना, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन तो किसके हैं, माइग्रेट पिकॉक के हैं। बट सबसे ज्यादा सेल जिसने की है वो कौन है, वो कौन है हमारा यहाँ पे लॉरा है, करेक्ट। इसके काउंट 21 है, से काउंट 24 है। तो इसने 24 ट्रांजेक्शन में इतना अमाउंट अचीव किया है, इसे 21 ट्रांजेक्शन में इतना अमाउंट अचीव किया है। अच्छा, इसमें और क्या रह गए हमारे पास, तो राइट क्लिक करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास और हैं। हम इस डेटा को समराइज कर सकते हैं हमारे हिसाब से, हम सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज दे सकते हैं। तो एवरेज निकाल के दे दिया, यानी जो काउंट यहाँ पे आ रहा था 8, 8 को डिवाइड किया है इस अमाउंट में, तो एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज सेल आप क्या करते हो, तो आपका पर्सन वाइज एवरेज सेल आ गया। अब मैं यहाँ से वापस सम कर रहा हूँ, समराइज वैल्यू है, उसके बाद मैक्सिमम निकालना है मुझे निकालना है मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, यानी इस पर्सन ने जो माल बेचा उसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना था। सी, जो मैक्सिमम अमाउंट इन्होंने बेचा है वो 936 का एक ट्रांजेक्शन है जो इन्होंने बेचा एंड्रू ने, और जो एनी है उसने 1242 का अमाउंट बेचा है, यानी मैक्सिमम ट्रांजेक्शन ये था इसका। हमको देखना है इसके एक ट्रांजेक्शन में सबसे मिनिमम ट्रांजेक्शन कौन सा था, तो यहाँ जाके हम बता रहे हैं और देख रहे हैं मिनिमम ट्रांजेक्शन कौन सा था। आप क्लिक करो, मिनिमम ट्रांजेक्शन दिखा देगा। तो आप देखिए मिनिमम 43 रुपीज का ट्रांजेक्शन इनका है, इनका एंड्रू का, और मैक्सिमम कौन सा ट्रांजेक्शन है इनका, मैक्सिमम अमाउंट का ट्रांजेक्शन था वो था हमारा, हमने देखा अभी 936 कुछ अमाउंट आ रहा था, करेक्ट। तो ये 2 तरीके ऑप्शन हुए। मुझे पता करना है कि किस शिपर कंपनी से इन्होंने माल बेचा। फॉर एग्जांपल शिपर कंपनी अगर मैं यहाँ डालता हूँ, देखिए मैं रो में डालता हूँ शिपर कंपनी को उठा के, ये मैंने यहाँ से मूव किया, ड्रैग किया यहाँ से, अब ड्रैग करके मैंने क्या कर दिया, इसको रोज में डाल दिया शिपर कंपनी को। नाउ सी द डिफरेंस, एंड्रू फुलर ने 3 शिपिंग कंपनी को यूज किया है और डेटा देखो यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं डेटा ये 43 जो आ रहा था, बेसिकली मैंने क्या कर दिया था, इसको मैंने इसको चेंज कर रखा है। मैं इसको काउंट पे ले आता हूँ वापस, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। Again, I am selecting to the count now. Now the count, total count is 8 and 2 from Federal Shipping, 5 from Speedy Express and 1 from United Package. Correct? अब मैं इधर से दे रहा हूँ बिकॉज मेरे पास एक बिगर स्क्रीन है जहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ डेटा को, तो हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा सर उधर देख करके कैसे बात कर रहे हैं, है ना। तो इधर एक स्क्रीन है मेरे पास, तो मैं इसको डेटा को देख पा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत स्मॉल है दिखने में। इस लैपटॉप पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज वो जूम भी साथ चल रहा है इसलिए। सो मैं इधर देख करके इसलिए बता रहा हूँ आपको, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो नाउ दिस इज 8 कैसे हुआ यहाँ पे, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 1, इनका टोटल हमारे पास 8 आ गया। ऐसे ही ना इनके 4 ट्रांजेक्शन है जिसने सिर्फ फेडरल शिपिंग को यूज किया, देखिए आप।
अगर मैं डेटा रो में ले जाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं उठा करके इसको रो में डाल रहा हूँ, शिपर कंपनी को देखा ऊपर नीचे कर सकते हैं इनसे। आपको लगता है कि मुझे इसको मूव करना है नीचे की तरफ, सेल्स पर्सन नीचे आ जाए, शिपर कंपनी ऊपर चले जाए। नाउ सी, यहाँ पहले फेडरल शिपिंग का डेटा है, सारे देखिए सेल्स पर्सन नीचे आ गए। फिर स्पीडी का डेटा है, उसके नीचे सेल्स पर्सन नीचे आ गए। अब यूनिट पैकेज का डेटा है, अब उसके सेल्स पर्सन नीचे आ गए। मैं उल्टा कर रहा हूँ वापस, मैं ड्रैग करके नीचे लेके जा रहा हूँ, देखिए अब क्या होता है। अब भी सबसे ऊपर मेरे पास सेल्स पर्सन आ रहा है, उसके बाद शिपिंग कंपनी आ रही है, अगेन सेल्स पर्सन, देन शिपिंग कंपनी, अगेन सेल्स पर्सन, शिपिंग कंपनी, करेक्ट। तो नाउ आई एम चेंजिंग इट टू एंड आई एम ड्रैगिंग इट एंड प्लेस इट टू द कॉलम। जैसे ही आप शिपिंग कंपनी को प्लेस करेंगे कॉलम्स में, देखिए डेटा चेंज हो जाएगा आपका। नाउ यू कैन सी डिफरेंस। मैं एक बार के लिए काउंट वाला जो पार्ट था ना, मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, बिकॉज हमको दिक्कत होती है। तो कैसे रिमूव करना है, आप यहाँ से जाके इस पे जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं फील्ड को। या मैं क्या करता हूँ, मैं जो पसंद करता हूँ, ड्रैग करके इसको बाहर छोड़ दीजिए आप, तो ये रिमूव हो जाएगा, करेक्ट। तो मैंने रिमूव कर दिया। आप देखिए, आप समझ पा रहे होंगे, मैंने काउंट वाला पार्ट हटा दिया अभी। अब देखिए यहाँ पे ना डेटा आ रहा है, एंड्रू फुलर ने फेडरल से कितना बेचा, स्पीडी से कितना बेचा, यूनाइटेड पैकेज से कितना बेचा, और ग्रैंड टोटल कितना था। ग्रैंड टोटल वही था जो हमने पहले देखा था, जो शिपिंग कंपनी के पहले आ रहा था, वही ग्रैंड टोटल अभी भी आ रहा है, देखिए। पर इसने इसको सेग्रीगेट कर दिया। यानी मेरा क्वेश्चन क्या था, अब मैं आपके क्वेश्चन पे जाता हूँ। मेरे को है ना कोई बोल रहा है, या मेरे बॉस बोलते हैं कि देखो ऐसा करो कि आप इस डेटा को ऐसा बना के दो, मुझे काउंट भी चाहिए कि शिपिंग कंपनी से कितने शिपमेंट मेरे गए, और मान लो ऑर्डर आईडी के हिसाब से, और टोटल कितना डेटा मेरा गया, करेक्ट। तो अमाउंट भी चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ। तो मैं एक बार सम को उठा के ले आता हूँ और अमाउंट को वापस ड्रैग कर रहा हूँ और लेकर के और वैल्यूज में डाल रहा हूँ। 2 बार मेरा सम आया, एक सम को मैं काउंट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाएगा यहाँ समझना। राइट क्लिक किया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं काम, और अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे जाइए फर्स्ट वाले पे, और यहाँ पे ऑप्शन आता है वैल्यू फील्ड सेटिंग, ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जाके भी आप इसको काउंट में कन्वर्ट करके ओके कर सकते हैं। देखिए ये काउंट में कन्वर्ट हो गया। तो 2 शिपमेंट थे फेडरल शिपिंग से, और 1200 का अमाउंट था। स्पीडी एक्सप्रेस से 5 शिपमेंट थे और इतना अमाउंट था, करेक्ट। तो ये डेटा हमारे पास आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। और मैं एक बार अकाउंट वापस हटा रहा हूँ बिकॉज देखने में इजी हो जाएगा डेटा हमारा। अब मैंने यहाँ तक डेटा निकाला था। अब बोलते हैं कि ना, मुझे बोलते हैं कि बॉस ने बोला कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा बताओ ना, मुझे परसेंटेज बताओ यार, ये तो मुझे समझ में नहीं आएगा, आप परसेंटेज पे चलते हैं अपन। मैं इसको एक बार रिमूव कर रहा हूँ शिपिंग को, ये डेटा आ गया मेरे पास। अमाउंट को एक बार वापस लाके मैं ड्रैग कर दिया, मैंने 2 बार अमाउंट ले लिया मैंने, बिकॉज मुझे एक बार परसेंटेज दिखाना है। किसी ने मुझे बोला कि आप ना परसेंटेज में बताइए डेटा, तो मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ। अब शो वैल्यू एस पे जा रहा हूँ मैं। अब परसेंटेज नो कैलकुलेशन अभी आ रहा था, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ परसेंटेज टू ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मेरा नीचे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अमाउंट देखिए 42 मेरा ग्रैंड टोटल है यहाँ का। इस ग्रैंड टोटल के हिसाब से मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैंने समराइज बाय की जगह मैंने क्या, शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल, क्लिक करिए आप। नाउ सी द डिफरेंस। ग्रैंड टोटल मेरा 100 है, इज इक्वल टू 100, एंड नाउ आई हैव सेग्रीगेटेड द अमाउंट्स इन द परसेंटेज। सो द greatest percentage is 23.90, करेक्ट, फ्रॉम द लोरा चालान। तो इन्होंने कितना बेचा है, 23% बेचा है, मैंने 5% बेचा है, 19% बेचा है। तो मैं डेटा यहीं पे परसेंटेज में निकाल लाया, और यहीं पे मेरा वो, मुझे काउंट भी मानो चाहिए, मैं काउंट भी यहाँ से ले आता हूँ। अमाउंट को एक बार ड्रैग करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ इस पे, और मैं इसको बोलता हूँ समराइज वैल्यू बाय काउंट। अब देखिए डेटा कैसा बना। मेरे बॉस की रिक्वायरमेंट थी कि आप मुझे काउंट बताइए, आप मुझे परसेंटेज बताइए, और आप मुझे क्या बताइए, अमाउंट भी बताइए। तो 7.28% मेरा परसेंटेज है, 8 मेरा काउंट है, और ये मेरा अमाउंट है, ठीक है। तो एक ही डेटाबेस से हम क्या क्या चीजें निकाल पा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसमें और क्या हो सकता था, इसमें और निकाल के देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर मेरा डेटा ऐसा ना होता, मैं काउंट का डेटा एक बार हटा रहा हूँ क्योंकि मेरा डेटा थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर होने वाला है, टफ हो जाएगा समझना। मैं शिपिंग कंपनी ले लेता हूँ एक बार, और शिपिंग कंपनी को मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉलम्स में। अब देखिए अब किस शिपिंग कंपनी से कितना परसेंट बेचा है, पहले ये आ रहा है, उसके बाद इनके अमाउंट आ रहे हैं, देखिए अमाउंट देन शिपिंग कंपनी। मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। अब देखिए आप, पहले फेडरल शिपिंग कंपनी का डेटा देखता हूँ पूरा। एंड्रू ने, मैं समझा रहा हूँ डेटा क्या निकल के आया। एंड्रू ने 2.8% जो है वो प्रोडक्ट बेचे, किससे, फेडरल शिपिंग से, और अमाउंट कितना है सम का, 1200। एंड्रू ने ही स्पीडी एक्सप्रेस से अपना प्रोडक्ट बेचा है, 4.19% है, और टोटल 1789 है, ठीक है। ये सम किधर से जा रहा है, ये सम इधर 100%, देखिए नीचे 100% आ रहा है। अब अगर मुझे कोई बोले कि नहीं ऐसे नहीं चाहिए मुझे डेटा, मुझे तो ये चाहिए कि है ना शिपिंग कंपनी के हिसाब से बताओ आप, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल नो, कॉलम टोटल नो, रो टोटल के हिसाब से निकालो परसेंटेज, रो टोटल में करता हूँ, देखो क्या होता है। अब रो 100 हो गई, 100 हो गई, मतलब एंड्रू ने टोटल माल कितना बेचा वो 100% मान रहा हूं मैं। पहले मैं बोल रहा था कि टोटल माल कितना गया,
टोटल सेल कितनी है, उसका कितना परसेंट एंड्रू ने बेचा। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा, अब मेरा जो है वो स्टेटमेंट चेंज हो गया। नाउ आई एम सेइंग कि इफ एंड्रू सेलिंग 100%, तो सेग्रीगेट फॉर मी कि कितना परसेंट किस वाले शिपमेंट से बेच रहा है वो। तो नाउ सी 38% उसने किसको यूज किया है, फेडरल को। 57% उसने किसको यूज किया है, स्पीडी को। और 3.91% उसने किसको यूज किया है, यूनाइटेड पैकेज को। ठीक है, देखिए मैं आपके फेस नहीं देख पा रहा और मैं समझ में नहीं पा रहा क्या आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा होगा। तो आशी एक बार तुम देख पा रहे हो कि स्क्रीन वगैरह सब कुछ चल रहा है प्रॉपर, तो मुझे एक बार तुम बता दो। आशु आर यू आशी आर यू देयर? यस सर। या नरेश, तुम देख पा रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ चलो गुड। तो देखिए, तो ये हमारा सिस्टम था, हमने रो में डाल दिया इसको अभी, और पहले हमारे कॉलम बेस पे चल रहा था। ठीक है, तो इसमें हम और भी चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मान लीजिए मैं एक बार के लिए कंफ्यूजन हटाने के लिए इसमें इसको एक बार शिपिंग कंपनी से बाहर निकाल रहा हूँ, ताकि डेटा थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। मैंने रो से किया था, तो रो का 100% रो ही रहेगा, और शिपिंग कंपनी आप ऐड करोगे तो ही वो अलग से दिखेगा आपको। ठीक है, वरना 30% पे आएगा नहीं। तो मैं क्लिक करके यहाँ बता रहा हूँ परसेंटेज किसका चाहिए आपको। शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ रो टोटल मैंने बोला था, अभी बोलता है परसेंटेज ऑफ व्हाट। देखिए बहुत ही मस्त चीज है इसमें, आपको किसका परसेंटेज चाहिए। मैंने कहा सर सेल्स पर्सन में जो एंड्रू है ना, मैं इसको नहीं लेता, मैं 100% लेता हूँ। मैं मानता हूँ लॉरा जो है उसका सबसे ज्यादा सेल परसेंट है, तो मैं मानता हूँ कि जो लॉरा है ना वो बेंचमार्क बना लेते हैं कि लॉरा ने जितना माल बेचा होगा ना उसका कितना परसेंट आपने बेचा, हम उससे जजमेंट कर लेंगे। अगर आपने लॉरा को क्रॉस कर दिया, इसकी सेल को क्रॉस कर दिया, तो हम क्या मानेंगे कि आप अच्छे परफॉर्मर हो। तो हमने लॉरा को क्लिक किया और ओके कर दिया एक बार, और मैं शिपमेंट एक बार हटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जहाँ डेटा इसने लॉरा ने माल नहीं बेचा होगा ना, वो थोड़ा नल आ गया होगा, कोई बात नहीं। मैं शिपिंग कंपनी एक बार हटा देता हूँ तो आपको ईजी हो जाएगा समझना। तो शिपिंग कंपनी मैंने हटा करके बाहर निकाल दी, करेक्ट। अब देखिए अभी मैंने क्या बोला है कि मैंने बोला कि 100% जो मेरा बेंचमार्क है वो कौन है, वो लॉरा चालान है। ठीक है, इसके आसपास किसने कितना कितना बेचा। अगर मैं 100% लॉरा को बोलता हूं तो आप देखिए 81% माइग्रेट पिकॉक बेच रहा है, माइकल जो है वो 73% पे जा रहा है, ये 50% परफॉर्मेंस ने दिखाई है, रॉबर्ट 4% पे रह गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ राइट क्लिक करके और मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं आप बेंचमार्क लॉरा नहीं, हमारा बेंचमार्क मान लेते हैं हम लोग कि एंड्रू है मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पे चेंज किया और मैंने इसको बोला सर हमारा जो बेंचमार्क है वो एंड्रू है। एंड्रू से किसने, अगर एंड्रू से ज्यादा किसने बेचा होगा ना तो 100% से ऊपर चले जाएगा, देखिएगा आप डेटा में, सी द डिफरेंस। अभी मेरा एंड्रू है वो 100% पे है, तो आप देखिए लॉरा ने कितना परसेंट बेचा है, 328% पे खेल रही है अभी वो। 100 से ऊपर क्यों चले गया, बिकॉज लॉरा है उसने ज्यादा माल बेचा है। 328% किसका, 328% हो गया है बेसिकली एंड्रू से। एंड्रू से ज्यादा इसने बेचा था, कितना ज्यादा बेचा, 328। आप इधर इधर है ना अमाउंट में भी देख सकते हैं, इधर 3000 आ रहा है और इधर 10,000 आ रहा है, तो यू कैन रिलेट द डिफरेंस। तो ये सब चीजें हम यहीं से कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा डेटाबेस मतलब कैसा आपकी रिक्वायरमेंट है ना उसके हिसाब से पिवट टेबल आपका काम करती रहेगी। अभी मैं और बताता हूँ आपको, देखिए इसमें अब देखिए इसमें डिफरेंस में रनिंग टोटल, अभी रनिंग टोटल इसमें आ नहीं रहा है इसलिए ये चलाने का मतलब नहीं। मैं आपको डिफरेंस फ्रॉम बताता हूँ। देखिए ये मैंने डिफरेंस ऑफ निकाला था। फिर पेरेंट टोटल मतलब होता है, पेरेंट कॉलम होता है जो हमारा जब हम एक से ज्यादा डेटा डाल देते हैं, जैसे मैं आपको बताया था ना अभी कि जब हम शिपिंग कंपनी डाल देते हैं, शिपिंग कंपनी भी वहीं आ रहा था, ऐसा डेटा था मेरा। अभी शिपिंग कंपनी को मैंने उठा करके यहाँ डाल दिया था, तो ये पेरेंट हो जाता है, ये वाला पेरेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो पेरेंट के साथ आपको करना है तो पेरेंट के साथ भी हो जाएगा वो। तो अगर वो पेरेंट के साथ करना है तो यहाँ पे जाकर के आप पेरेंट टोटल के हिसाब से आएगा, तो पेरेंट टोटल है ही नहीं अभी यहाँ पे, तो ये देखो इसने जीरो कर दिया सारा। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर जरूरी है, आप क्या फॉर्मूला पेस्ट करना चाह रहे हो उसके हिसाब से। तो एक बार मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और इसको चेंज कर रहा हूँ, वैल्यू शो एज डिफरेंस फ्रॉम। तो आप बताइए शिपिंग कंपनी जो है उसका फेडरल शिपिंग कंपनी करके ओके कर रहा हूँ एक बार। अब देखिए फेडरल शिपिंग कंपनी से एंड्रू का कोई डेटा ही नहीं है, ये देखिए डिफरेंस फ्रॉम मतलब किससे कितना परसेंट डिफरेंस है। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं आपको डेटा वापस वैसे लेके जाता हूँ तो इजी रहेगा समझना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हाँ करेक्ट, अब देखिए आप सम ऑफ अमाउंट यहाँ पे आ रहा है फेडरल शिपिंग से एंड्रू का, देखिए क्या आ रहा है, ये तो कुछ आएगा नहीं बिकॉज हमने क्या कर दिया, हमने देखो क्या लिया था डेटा में, हमने उसको बोला था कि आप जो हमारा डेटा दिखा रहे हो ना वो दिखाओ डिफरेंस फ्रॉम व्हाट। डिफरेंस फ्रॉम हमारा था फेडरल शिपिंग, फेडरल शिपिंग अपने आप में तो जीरो हो जाएगा, और उससे कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो ये प्लस आ रहा है ये माइनस आ रहा है, ये परसेंटेज में भी जा सकता है। मतलब ये तो मैंने आपको कैसे दिखाया, ये तो मैंने आपको दिखा दिया डिफरेंस सीधा सीधा। मैं परसेंटेज वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, पहले मैंने कौन सा लिया था, डिफरेंस फ्रॉम लिया था, अभी मैं डिफरेंस फ्रॉम परसेंटेज ले रहा हूँ। अब मैं वापस एंड्रू पे क्लिक करता हूँ, देखिए अब परसेंटेज में देखने की कोशिश कीजिए। मैंने एंड्रू फुलर ले लिया, मैं इसको एंड्रू फुलर की जगह चेंज कर देता हूँ और डिफरेंस फ्रॉम शिपिंग कंपनी
name and previous no. This is called federal shipping and then okay. Now see 49% जो हमने पहले अमाउंट देखा था प्लस में अमाउंट आ रहा था 49% इंक्रीज है ये, 89% डिक्रीज है ये, किससे? फेडरल शिपिंग से। तो देखिए बहुत सारा स्ट्रक्चर हो सकता है, बहुत सी चीजें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर कॉल आपका है कि डेटा देना क्या है। इसका बहुत ऑप्शन है, आप जितना चाहो उतना निकाल के दे देगा, आप जितना खेलना चाहो खेलते जाओ। नीचे तक ऑप्शन है, रनिंग टोटल आ रहा है, फिर रैंक भी स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कर देता है ये। आप जाओगे तो जैसे आप बोलते हैं रैंक अगर हमें निकालनी हो किसने कितना बेचा, शिपिंग कंपनी, एक बार ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ अमाउंट को हटा देता हूँ, सी ये सम ऑफ अमाउंट है, मुझे यहाँ पे गया, उसने मुझे बोला कि आप रैंक बता दीजिए सर, तो हमने बोला रैंक बता दीजिए, तो ये रैंक निकाल के देगा सेल्स पर्सन की। ओके, तो रैंक पे सबसे पहले कौन आ रहा है, देखिए इसने रैंक कैसे निकाली है, ये 9 रैंक दी है। रैंक मतलब उल्टा रैंक है, आप इसको चाहो तो असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंज कर सकते हो। तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जा रहा है, मैं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लेता हूँ। देखिए दो तरह की रैंक क्यों होती है कई बार। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि है ना, किसी ने को रेस लगानी है और वो दौड़ रहा है, तो जितना कम टाइम वो लेगा ना तो वो जीता हुआ माना जाएगा। अगर वो दौड़ नहीं रहा है और कुछ होल्ड कर रहा है, मान लो मैंने बोला कि आप इसे ना एक मैंने पत्थर आपको दिया जिसका वेट फॉर एग्जांपल 5 kg है, और मैंने बोला आप इसको सीधा हाथ में रख के होल्ड कीजिए, तो जितना टाइम आप ज्यादा लोगे ना तो उतना आप जीतोगे, करेक्ट। तो एक जगह हमें कम टाइम लेना है, वो रनिंग है, और एक जगह जहां हमें होल्ड करना है वहां पे हमें ज्यादा टाइम शो करना है, तभी हम जीतेंगे। तो यहाँ पे है ना, जिसने भी ये फर्स्ट आना चाहिए था, क्यों वैसे ही फर्स्ट आना चाहिए था लॉरा, पर यहाँ पे देखो 9 रैंक पे आ रहा है, बिकॉज हमने क्या लिया उस पर डिपेंड करता है। हमने डेटा लिया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हम इसको चेंज करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सी अब मैं सेल्स पर्सन के हिसाब से डेटा ले रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब देखिए फर्स्ट पे आ गया, जो 9 था वो 1 क्यों हुआ, बिकॉज हमने डेटा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लेना है। तो ये सारे काम यही हो सकते हैं, मेरे को सम भी लेना है यहीं पे, सम भी मैं ही ले लेता हूँ। देखिए तो यस अमाउंट भी आ गया, मुझे काउंट भी यही चाहिए, अमाउंट लेकर एक बार और ड्रैग कर दीजिए आप, और इसको जाकर के बोल दीजिए मैं काउंट चाहिए। यहाँ पे जाके नहीं बोलता हूँ मैं एवरेज चाहिए, चलिए यहाँ पे एवरेज ले लीजिए आप, दिस इज एवरेज। सो यू आर गेटिंग दिस, कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एवरेज यही निकाल लिया मैंने यहीं पे। अगर किसी को चाहिए दिखाना डेटा तो सिंपल बता, यहाँ पे डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए सर ये इसका सम ऑफ अमाउंट परसेंटेज है, यहाँ पे है ना, देखिए आप यहाँ पे इसका एवरेज आ रहा है और यहाँ पे इसका सम आ रहा है। तो ये एक ना एक स्ट्रक्चर हुआ, आपको क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या हमने कितनी क्वांटिटी बेची हमें ये भी देखना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको डेटा सम हटा रहा हूँ ताकि स्ट्रक्चर प्रॉपर हो, इसलिए मैं क्वांटिटी उठा के ले आता हूँ। देखिए कितनी क्वांटिटी बिकी है, 148। अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो कौन टॉप पे चल रहा है, तो इसमें भी यही टॉप पे है, करेक्ट। तो अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से भी ये डेटा क्वांटिटी के हिसाब से आ गया, ये डेटा मेरे पास अमाउंट के हिसाब से, यूनिट प्राइस को सम करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज ये हाँ यूनिट प्राइस में क्या निकाल सकते हो आप, मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हो, कौन सी है ना मैक्सिमम अमाउंट का आपने डेटा सेल किया, ये आपको निकालना ही निकाल सकते हो। सेम प्रोडक्ट नेम के हिसाब से आपको खेलना है, किस आदमी ने कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचा। अब ये 55 रो है, देखिए आप अगर 55 अगर मैं रोज को डाल दूंगा यहाँ पे, तो देखिए कैसा बन जाएगा। एंड टू फुलर ने कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचा, यहाँ पे आ गया, ये डेटा मेरा स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। मैं डेटा को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ उठा करके, और जो मेरा सेल्स पर्सन था उसको मैं कॉलम में मार्क कर रहा हूँ, ताकि ये कॉलम्स में आ जाए और मेरा डेटा जो है प्रोडक्ट का वो रोज में रह जाए। अभी ये मेरे जितने भी सेल्स पर्सन थे ये कॉलम में दिखेंगे आपको, देखिए 9 थे ये, तो 9 कॉलम बन गए मेरे पास, और एक ग्रांड टोटल का कॉलम बन जाएगा लास्ट में। अब इसमें बीच में देखिए दो बार कॉलम आ रहा है, बिकॉज बीच में हमने सम भी ले रखा है। एक सम को एक बार हटा देते हैं तो ईजी हो जाएगा समझना। अभी देखिए कितने कॉलम मेरे पास है, टोटल 9 कॉलम मेरे पास है। और ये देखिए ये जो था एलिस मटन, ये किसने बेचा, सिर्फ है ना एंड्रू फुलर ने बेचा है, फिर किसी और ने बेचा है क्या, देखिए हाँ ये देखिए इसने ये बेचा, इसने ये बेचा, ये इसने बेचे हैं, और कितनी क्वांटिटी बेची है क्वांटिटी दिखा रहा है, ये अमाउंट नहीं दिखा रहा है। मुझे अमाउंट भी चाहिए तो मैं अमाउंट भी उठा करके यहाँ पे एक बार ड्रैग करके डाल देता हूँ, ये अमाउंट भी आ जाएगा। नाउ सी 30 क्वांटिटी थी, 936 इसने टोटल अमाउंट का बेचा था। आपको ध्यान है अपन ने एक फिगर देखा था, तब पता चला था कि एंड्रू फुलर का जो अपना देखा था टॉप कौन सा, मतलब मैक्सिमम सेल कौन सी थी, तो यही अमाउंट आ रहा था उसमें 936 का। अब देखिए नीचे जाएंगे तो आपको है ना एंड्रू फुलर का जो भी डेटा है 936 से ऊपर वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। देखिए 121 आ गया, 240 आ गया, लेकिन 926 से ऊपर देखिए वो जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, टोटली आ ही रहा है सब। जो हम तब सम देख रहे थे वही सम यहाँ पे है, पर हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया। दीज आर और क्वांटिटीज, दीज आर और अमाउंट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मुझे ये डेटा और स्ट्रक्चर करना है मान लीजिए, और भी हम आगे क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डिजाइन है, यहाँ पे इसको मैं एक बार, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने का, बिकॉज ये तो डेटा को कैसे देखना है आपको उस पर डिपेंड करता है। मैं एनालाइज पे जा रहा हूँ, मैंने क्या क्या बताया आपको बता देता हूँ। जो डेटा हम यहाँ से कर रहे थे वो फील्ड सेटिंग से आता है बेसिकली। जो आप राइट क्लिक करते हो ना यहाँ पे, ये राइट क्लिक करके जो हम कर रहे थे अभी, समराइज वैल्यू बाय एंड शो वैल्यू एज, ये दो चीज जो हम कर रहे थे बेसिकली आता कहाँ से है, ये
ये यहाँ से आता है फील्ड सेटिंग से। आप यहाँ पे जाइए, फील्ड सेटिंग आएगा कैसे, आप पिवट टेबल में जाइए। पिवट टेबल में देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा, जब आप पिवट टेबल में आते हैं तो यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, डिजाइन और एनालाइज। क्या होता है ना कि जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं इस टाइम, है ना, उस टूल के अंदर कितने ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे चार्ट पे आप जाओगे 3 टूल दिखेंगे आपको जब आप ओपन करोगे, टेबल पे जाओगे 2 टूल दिखेंगे। ऐसे पिवट टेबल टूल आ रहा है, देखिए यहाँ पे पिवट टेबल टूल लिखा हुआ आ रहा है, उसमें 2 ऑप्शन है, डिजाइन वाला और एनालाइज वाला। जब तक आप पिवट टेबल में नहीं आएंगे ना, ये एक्टिव नहीं होंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखो पिवट टेबल के ये दोनों दिखना बंद हो गया अभी, यहाँ नहीं आ रहे हैं। पर जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जाकर के मैं कर देता हूँ पिवट टेबल के अंदर, जैसे ही मूव करता हूँ, सी देयर इज अ एनालाइज, एंड तो मैं एनालाइज पे जा रहा हूँ। एनालाइज में मेरा फील्ड सेटिंग है, सब मेरे पास है, काउंट मेरे पास है, एवरेज मेरे पास है, मैक्सिमम है, जो मिनिमम जो आपने अंदर देखा वो सब कुछ यहाँ पे है। आपको परसेंटेज वाला पार्ट जो देखना था ना, वो यहाँ से आ रहा था, शो वैल्यू एज। ये देखिए, आपको नो कैलकुलेशन है, आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए पेरेंटिंग रो, पेरेंटिंग कॉलम, मुझे नहीं, मुझे चाहिए डिफरेंस फ्रॉम हुम, सेल्स पर्सन। कौन सा सेल्स पर्सन, मेरे को लगता है मेरे को चाहिए जैनित। अब जैनित के हिसाब से मैं कर रहा हूँ ओके, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन दिखेगा, मैं डेटा थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसमें, तो आपको समझ में आने लगेगा। मैंने क्वांटिटी हटा दी अभी, और एक बार के लिए सेल्स पर्सन को मैं इधर ले आता हूँ और प्रोडक्ट नेम को हटा देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, अब मैं इसको एक बार के लिए वापस सॉर्ट करता हूँ। इसमें गया मैं, फील्ड सेटिंग पे गया, और यहाँ पे जाके मैंने इसको बोल दिया कि आप शो वैल्यू एज करिए और डिफरेंस फ्रॉम बताइए, किससे डिफरेंस चाहिए आपको। अब मैंने बोला डिफरेंस फ्रॉम वूम, मैंने बोला इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस फ्रॉम है यहाँ पे, आप प्रोडक्ट के नेम से भी ले सकते हैं, पर हमारे पास अभी डेटा ज़्यादा जो है वो हमारा सेल्स पर्सन का डेटा ही ठीक है पूरा प्रॉपर, तो हम सेल्स पर्सन के हिसाब से ले लेते हैं और लॉरा को लेकर ओके कर देते हैं। नाउ सी, अभी यहाँ पे 0 है ये, बिकॉज इससे डिफरेंस ले रहे हैं हम, तो सबने इससे कम ही बेचा है, तो देखिए माइनस में फिगर आ रहा है। ये अगर आपको परसेंटेज में करना है तो यहीं से आप परसेंटेज में कर दीजिए, वो राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ये भी आपको दिखाता हूँ मैं, ताकि कल कंफ्यूजन नहीं हो, आपको लगता है कि मुझे इससे नहीं करना, मुझे उससे जाना है, तो आप शो वैल्यू डिफरेंस फ्रॉम की जगह आप जाइए और यहाँ पे कर दिए डिफरेंस परसेंटेज। अब ओके करके देखिए, सी तो इसने 69% कम बेचा है, इसने 75% कम बेचा है, इसने भी 75% आपका इससे लेस बेचा है। तो कंपेयर टू दिस लॉरा, दीज आर द फिगर्स ऑफ द अदर सेल्स पर्सन, करेक्ट। अगर हम किसी और का ले लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज, तो उसके आपसे डिफर कर जाता है ये, ठीक है। तो ये हमारा तरीका था, हम कैसे समझाए। तो 2 चीज मैंने आपको यहाँ बताई मेनली जो थी, कि डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर। देखिए मैंने ये वाला कॉलम यूज करके दिखाया आपको, मैंने ये वाला पार्ट फील्ड ऑप्शन आपको यूज करके दिखाया। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ये हमने 4 थे, इसमें से मैंने अभी फिल्टर वाला आपको नहीं बताया है। ये दोनों मैंने आपको यहाँ पे वैल्यूज डालनी होती है, ये ऑटोमेटिक होता है। जहाँ पे अमाउंट वगैरह आ रहा है ना, क्वांटिटी अमाउंट, ये उठा के यहाँ डालो आप, ठीक है, यहाँ वैल्यूज डल जाएंगी। जो ये वाला कॉलम होता है, यहाँ पे जो कॉलम में आपको दिखाना है वो आप डालिए। शिपर कंपनी डालनी, मुझे शिपर कंपनी डाल दीजिए आप, ठीक है। अभी क्या परसेंटेज चल रहा है, ऐसे थोड़ा डिस्ट्रक्ट हो गया ये, तो कोई बात नहीं, आप इसको एक बार सम अमाउंट को हटा दीजिए। अभी ये इसमें चल रहा है, मैं अमाउंट भी डाल देता हूँ एक बार, और टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और क्वांटिटी भी दिखा रहा है, अमाउंट भी दिखा रहा है। अब देखिए इधर फेडरल शिपिंग है, स्पीडी एक्सप्रेस है, यहाँ पे इसने दिखा दिया हमको। सेम हमारे पास सेल्स पर्सन आ गया यहाँ पे। अभी देखिए हमने सब कुछ यूज किया, पर ये वाला फिल्टर अभी तक यूज नहीं किया है हमने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं है ना सेल्स पर्सन की जगह तो डाल रहा हूँ प्रोडक्ट को, इसको मैं सेल्स शिपर कंपनी को यहाँ से उठा के मैंने वैल्यूज में डाला। देखो यहाँ पे जैसे मैं फिल्टर पे डालूंगा, देखो क्या हो जाएगा, शिपर कंपनी ऊपर चलेगी मेरी। तो आपने जो फिल्टर कभी लगाया हो ना, वो काम यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, फेडरल, स्पीडी और यूनाइटेड। मेरे को लगता है मुझे स्पीडी का डेटा देखना था, और ओके कर दिया, आ गया। यहाँ स्पीडी एक्सप्रेस दिख रहा है, ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, स्पीडी एक्सप्रेस का डेटा है सिर्फ। जिस पर्सन ने, जिस सेल्स पर्सन ने स्पीडी एक्सप्रेस को यूज किया है, उन सबका नाम यहाँ पे आ रहा है, उन सबकी क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है, उस सबका अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। सेम मैं चेंज कर देता हूँ, उसको बोल देता हूँ कि सर ऐसे नहीं करना, मुझे फेडरल शिपिंग करना है, और ओके कर दो आप। अब फेडरल शिपिंग का डेटा आएगा। मुझे लगता नहीं सर 2 चाहिए कम से कम, तो आप सेलेक्ट मल्टीपल पे जाओ, 2 को यूज करो, यानी आपको फेडरल भी लेना है और आपको यूनाइटेड पैकेज भी लेना है, और देन ओके दबा दो। नाउ सी, अब इसमें 2 आ रहे हैं, मल्टीपल आइटम ऊपर शो हो रहा है। मल्टीपल आइटम कौन कौन से, फिल्टर दिख रहा है यहाँ पे, ये फिल्टर पे दिखाएगा आपके 2 सेलेक्ट किए हैं आपने। द फर्स्ट इज फेडरल शिपिंग, सेकंड इज यूनाइटेड पैकेज। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। इफ आई अनचेक दिस and I select only federal shipping, then okay, see this is my data. Now I am also checking the united package, the okay. Now see, क्या मल्टीपल जब हम चले जाते हैं तो डेटा वैसे चेंज हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे डालते हो, उससे क्या होता है, ये चेंजेस हो जाते हैं। और सबसे बड़ा काम जो ये करता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये सबसे बड़ा जो काम करता है, कि इसका काम क्या है, ठीक है, वो आपको बताता हूँ।
तो अभी ये वाला चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। उसके बाद हम अभी डेट पे काम करना हमारा बाकी है, और बाकी हम चीज़ों पे और काम करते हैं अभी थोड़ा थोड़ा। एक बार आप थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ 2 मिनट, है ना, फिर अपन वापस कनेक्ट करते हैं। सो नरेश, Yes, sir. so everything is going well. Yes, sir. So everything is going well, सही चल रहा है सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, यहाँ तक कुछ समझ, बहुत फास्ट तो नहीं हुए? No, no, sir. It's okay. Normal. चलिए, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, यहाँ पे हमने एंड्रू फुलर लिया, एनी ले लिया, जेनेट ले लिया, ये सब हमारे पास कम क्वांटिटी आई, ये हमारा अमाउंट आ गया, यहाँ तक डेटा हमने देखा। अब हमको क्या करना था कि हमको लगता है इसका बेनिफिट क्या है, तो हमको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा बेनिफिट इसका है। अगर कोई आपसे ये बोल दे कि जो आपने मुझे डेटा दिया ना, आपको बोलते हैं कि आपका जो बॉस है उसने आपको बोला कि बोले सर है ना, मैंने आपको डेटा तो दे दिया, और बॉस ने बोला कि भैया तुम एक काम करो, हमें एक ऐसा डेटा बना के दो आप, कि है ना, आपसे वो डिमांड ये कर रहे हैं आपके बॉस कि है ना, मुझे चाहिए कि आपने डेटा तो बना दिया, पर मैं चाहता हूँ कि हर डेटा की शीट अलग बन जाए, ताकि सेल्स पर्सन को उसी परफॉर्मेंस में भेज दूँ। तो जैसे मुझे क्या परफॉर्मेंस भेजनी थी सेल्स पर्सन को, उसने किस शिपिंग कंपनी से कौन सा प्रोडक्ट बेचा, ये 2 चीज मुझे, इसको मैंने क्लिक किया, देखिए डेटा ऐसा आ गया, मैं जो सेल्स पर्सन है उसको यहाँ डाल रहा हूँ और सेल्स पर्सन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब देखिए जो एलाइस मटन है वो कितनी क्वांटिटी 936 में बेची है, शिपिंग कंपनी जो है वो मैं उठा रहा हूँ एक बार यहाँ से, और शिपिंग कंपनी मैंने फिल्टर से रिमूव किया और सेल्स पर्सन को उठा करके और फिल्टर में डाल दिया। सी, अब यहाँ पे आपको सेल्स पर्सन दिखने लग जाएंगे। आपको जेनेट का डेटा देखना है, आप जेनेट का डेटा देखिए। आपको लगता है जेनेट का नहीं देखना, मुझे नैन्सी का देखना, आप नैन्सी का देखिए। डन। मुझे एक बार के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ फिल्टर को, ऑल देख रहा हूँ, और ऑल पे क्लिक करके मैंने ओके कर दिया। अभी सब दिख रहा है डेटा। कोई मुझे बोलता है कि ना आप ही बताइए कि है ना, मुझे ये शीट जो नीचे दिख रही है आपको, डेटा वाली शीट वाली, मुझे यहाँ पे सारे सेल्स पर्सन चाहिए, और मुझे ये डेटा जो आपने निकाला ना, ये तो आपने सबका निकाल दिया, मुझे सेल्स पर्सन वाइज डेटा यहाँ पे चाहिए। तो क्या ये हो सकता है कि मुझे अलग अलग शीट, तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल है मेरे लिए, यहाँ पे जाऊंगा, एंड्रू फुलर को क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, डेटा आ गया, कॉपी करूंगा यहाँ से इस डेटा को, कॉपी करने के बाद और एक नई शीट खोलूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। इतनी मेहनत करूंगा तो फिर मुझे क्या बोलेंगे लोग, ये तो सही नहीं हो रहा ना, मतलब आप अगर एक्सेल यूज कर रहे हो तो आपको कम टाइम में काम करना है, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे हम चेंज करते हैं इसको, हम आपको नया तरीका बताते हैं इसका। इतनी मेहनत आप मत कीजिए। जितने यहाँ पे 9 लोग हैं ना, राइट, 9 सेल्स पर्सन हमारे पास है, वो ओके कर रहे हैं, सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, सबका डेटा हमारे पास है, मतलब सबका डेटा, मतलब टोटल अमाउंट जो है वो इतना आना चाहिए हमारा। वो टोटल अमाउंट देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, टोटल 2142 मेरी क्वांटिटी है, और ये मेरा ये है। अगर मैं इसका काउंट भी निकाल लूँ तो मुझे पता लग जाएगा बेसिकली कितना मेरा, अगर 99 काउंट मेरा आ जाए तो मुझे पता लग जाएगा मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। तो मैं इस वाले डेटा को भी यहाँ पे जाके काउंट बदल लेता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, उसके बाद समराइज वैल्यू बाय किया मैंने, उसके बाद काउंट पे क्लिक कर दिया, ये काउंट 99 आना चाहिए, काउंट 99 आ रहा है, इसमें डेटा मेरा पूरा है, सी 99 आ गया, और सब मेरा मैच कर गया, यानी मेरा डेटा पूरा आ गया। क्यों आ गया पूरा, बिकॉज सारे के सारे जो मतलब जितने टोटल सेल्स पर्सन थे वो सिलेक्टेड है अभी राइट नाउ, सी, so all are selected right now. If you want to select more than one, तो I select Annie, I select Michael, I select Robert, then okay. अब ये जो डेटा है 3 लोगों का ही है, देखो तो सम हमारा कितना आ रहा है टोटल, काउंट 24 ही रह गया, 99 नहीं रहा। 99 क्यों नहीं है, बिकॉज सारे सेलेक्ट नहीं है, करेक्ट। अब हम सारे सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार के लिए और ओके कर देते हैं, अभी 99 आ रहा होगा नीचे, आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे ऐसे हो सकता है कि सेल सारा यहाँ पे डेटा आ जाए। अब आप करिए, ये बहुत बहुत सही चीज है, आप एनालाइज में जाइए, आप इसको ध्यान से देखिएगा ना। आप एकदम से, अगर आप अभी सो रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, तो एक बार उबासी आराम से ले लीजिए, क्योंकि आप जितनी देर उबासी लेंगे ना उतनी देर में काम हो जाएगा। तो एक बार आप ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ मैं एनालाइज में गया हूँ, यहाँ पे सबसे इधर लेफ्ट में ऑप्शन आ रहा है, आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो। ऑप्शन पे आप एनालाइज पे जाइए, पहले पिवट टेबल्स पे जाइए, अंदर जाने के बाद एनालाइज पे जाइए, एनालाइज पे जाने के बाद आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आएगा शो रिपोर्ट, यहाँ पे आएगा देखिए शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। मैं वापस बता रहा हूँ, आप एनालाइज पे जाइए, एनालाइज में आप जाके ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन में आप सेकंड नंबर का ऑप्शन चूज कीजिए, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इस पे आप क्लिक कीजिए। तो आपके जो रिपोर्ट फिल्टर पे है ना, ये वाला फिल्टर है, इस फिल्टर पे जो पर्सन होगा ना, सेल्स पर्सन है, जो फील्ड होगा, इस फिल्टर में जो फील्ड है वो यहाँ शो हो जाएगा आपके सामने, आ गया। अगर ये 2 चीज होती, यानी सेल्स पर्सन भी होता और प्रोडक्ट नेम भी होता, हो सकता है सेल्स पर्सन भी होता और
हो सकता है आपका कौन सा शिपिंग कंपनी भी होती, हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। शिपिंग कंपनी को उठा करके मैंने फिल्टर में डाल दिया। देखिए अब दो चीजें चल रही है, मल्टीपल आइटम्स को हटा रहा हूँ मैं, इसको ऑल कर रहा हूँ मैं, रोक के कर रहा हूँ। ये देखिए अभी शिपिंग कंपनी मेरे पास अभी देखिए 99 काउंट आ रहा है क्या, 99 काउंट आ रहा है, बिकॉज ऑल शिपिंग कंपनीज आर सेलेक्टेड, ऑल सेल्स पर्सन आर सेलेक्टेड. नाउ आई एम चेंजिंग माय selection criteria. Right now I am selecting federal shipping only and then okay. Now the data is only federal shipping. So this is representing data of federal shipping. It means total 34 transaction done from the shipping company federal shipping, correct? So now I am changing this and these are all, selecting the all and now I am at all, right? अब मैं वापस जा रहा हूँ एनालाइज, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ आप देखिएगा, यहाँ पे शीट्स ऐड होंगी वो देखिएगा। एनालाइज, एनालाइज के बाद मुझे बोला क्या है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। आपके बॉस ने आपको बोला मुझे ये वाला डेटा जो आपने बताया, ये तो आपने टोटल डेटा बता दिया मुझे, आई वॉन्ट सेपरेट शीट फॉर ईच एंड एवरी सेल्स पर्सन, करेक्ट? तो मुझे वो डेटा निकाल के देना है मेरे बॉस को। ऑप्शन पे गया मैं, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, देखिए दोनों दिख रहे हैं, कंपनी नेम भी मतलब शिपिंग कंपनी भी आ रही है और सेल्स पर्सन भी आ रहा है। नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसे आप ओके करोगे ना, नीचे देखिएगा ध्यान से क्या होता है, ये मैजिक है एकदम। सी द डिफरेंस, एंड्रू फुलर, एनी, ये देखिए ऊपर सिर्फ उसी का डेटा आ रहा है, यहाँ एनी आ रहा है, यहाँ एनी आ रहा है। हर एक सेल्स पर्सन की हमने क्या बना दी, एक शीट बना दी। कितने क्लिक में? सिर्फ एक क्लिक में। अगर ये मैं करने बैठता तो मुझे कितना टाइम लग जाता? 9। अगर मैं एक जने को करता हूँ कॉपी पेस्ट तो मुझे लगता है शायद 2 मिनट लगते हैं। अब ये डेटा तो चलो मान लीजिए सेल्स पर्सन था, 9 शीट मेरे पास बनती। अगर ये मान लीजिए प्रोडक्ट वाइज होता तो कितनी शीट बनती? 55 शीट्स। कितनी बन जाती? 55 शीट्स। कैसे बनती वो भी देख लेते हैं अपन। तो मुझे कौन सा शीट रखनी है और कौन सी शीट मुझे हटानी है। तो आई हैव सेलेक्टेड दिस, सेलेक्ट ऑल। इसके बाद मैंने डेटा वाली शीट रख ली। देखिए मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर दी, सारी शीट हटा देता हूँ एक बार। सेलेक्ट ऑल पे गया मैं और कंट्रोल के साथ मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ और इसको हटा दे रहा हूँ। बाकी सबको मैंने राइट क्लिक किया और डिलीट। अगेन शीट पे आ गया मेरी। देखिए ये मेरा डेटा है, ये मेरी शीट जो मैंने आपको दिखाई थी सुबह वो है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, अभी काम नहीं है इसका भी। अब इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने तीनों शीट रख ली, बाकी सब हटा दिए वापस। ये कैसे किया मैं दोबारा बता दूंगा, अभी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैं बहुत बड़ा काम करूंगा इससे भी। अभी हमने कितना देखा था, सेल्स पर्सन देखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ, प्रोडक्ट नेम यहाँ नहीं आने चाहिए और यहाँ सेल्स पर्सन आना चाहिए। तो मैं सेल्स पर्सन को यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ नीचे वाले फील्ड में, प्रोडक्ट नेम को उठा के ऊपर डाल रहा हूँ और शिपिंग कंपनी को हटा रहा हूँ। मेरा डेटा कैसा था, मेरा डेटा ऐसा था कि शिपिंग कंपनी वाइज डेटा मैंने यहाँ पे डाला। अब देखिए मैंने किया क्या, मैं यहाँ से काउंट पे हटा देता हूँ एक बार के लिए, ताकि डेटा थोड़ा स्ट्रक्चर सा दिखे आपको, ना कंफ्यूज हो जाएंगे अपन लोग। हाँ अब ये देखिए डेटा मेरा ये है। मेरे जो बॉस हैं या मेरे जो सीनियर हैं या जो मैनेजर हैं, उनके रिक्वायरमेंट क्या है? उनकी रिक्वायरमेंट है हर एक प्रोडक्ट किसने बेचा, कितने का बेचा, मुझे वो डेटा चाहिए। तो मैंने बोला सर 55 का वो है टोटल। बोले मुझे मतलब नहीं कितनी रोज हैं आपको, अगर 55 मेरे अगर प्रोडक्ट हैं तो मुझे 55 शीट बना के दे दो कि कौन सा प्रोडक्ट है वो कौन बेचता है, कितना बेचता है। बोले 55 शीट क्यों नहीं चाहिए आपको? बोले सर मुझे अलग अलग प्रिंट आउट निकालना है। ये रीजन हो सकता है, या ये रीजन हो सकता है कि मुझे डेटा कैसे ऐसे सेग्रीगेट करके देना है, या मुझे अलग अलग आदमी को शीट्स भेजनी है उसकी कि भैया देखो ये वाला प्रोडक्ट तुमने बेचा था, ये परफॉर्मेंस तुम्हारी है, या कि भैया ये सेल्स पर्सन है इसने इतना परफॉर्मेंस दिया, ये मैं उसको बताना था, करेक्ट। अब मैं बताता हूँ प्रोडक्ट नेम। देखिए प्रोडक्ट नेम में कितने लोग हैं, 55 डेटा देखिए आप नीचे तक, करेक्ट। अब मुझे इसकी शीट बनानी है। अब दोबारा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे फिल्टर के अंदर प्रोडक्ट नेम है, मेरे कॉलम के अंदर शिपिंग कंपनी यानी ये है, इसके बाद मेरे सेल्स पर्सन में सेल्स पर्सन है, यहाँ मेरी वैल्यूज आ रही है, करेक्ट, यानी अमाउंट है। अब मैं जाता हूँ एनालाइज पे, एनालाइज पे जाके मैं गया ऑप्शन पे, ऑप्शन पे जाने के बाद शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, और जैसे मैं ओके करूंगा तो टाइम लग जाएगा, हो सकता है क्रैश हो जाए सिस्टम, मुझे नहीं पता 55 शीट बना पाएगा नहीं बना पाएगा, बट लेट्स ट्राई, देखेंगे जो होगा होगा तो वापस कर लेंगे अपन। दिस इज ओके। कितना टाइम इसने लिया देख रही है, ये शायद हैंग ना हो जाए नहीं हो गया काम, हैंग नहीं हुआ, इज्जत बचा ली इसने। अभी आप देखिए एलिस मटन कितनी शीट्स बन गई आप देखते जाइए, 55 शीट है यहाँ पे, ये देखिए यू कैन सी द 55 शीट्स, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट मेंशनिंग हियर। कौन सा प्रोडक्ट किसने बेचा है, देखिए एंड्रू फुलर ने ये वाला प्रोडक्ट बेचा था, बहुत अजीब सा नाम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये सब फ्रेंच, अब ये नाम सीख लीजिए, आपको अच्छे लगेंगे मेन्यू में बोलने में। तो यहाँ पे ये 55 नेम बहुत अच्छे नेम है, आप कहीं भी जाके बोलेंगे सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा आपसे।
तो देख लेंगे 55 शीट्स जो है मैंने निकाल दिए। ये देखिए मेरा डेटा था, इस डेटा के अंदर ये मेरी शीट थी, देखिए 70 नंबर शीट चल रही है अभी, क्योंकि मैंने जो पहले वाली शीट बनाई थी वो भी इसमें कन्वर्ट हो गई है, तो 9 शीट वो थी, बीच में जितनी शीट हमने डिलीट की वो भी काउंट कर लेता है ये। जब भी नई शीट डालोगे तो आप एक नया पॉइंट डाल दीजिए, जैसे मैं नई शीट डाल रहा हूँ तो 71 नंबर शीट हो गई, करेक्ट। तो आप देखिए इतनी शीट मैंने बना दी है। अगर ये डेटा मैं करने बैठता, मुझे एक एक शीट डालनी है, तो आप सोचिए कितना टाइम हमको लगता। अब मैं सारी डिलीट कर रहा हूँ, शीट कैसे डिलीट करूँगा बताता हूँ मैं आपको। शीट डिलीट करने का तरीका बता रहा हूँ, ये रिवर्स तरीका, मतलब ये कोई मतलब ये ट्यूटोरियल वगैरह कुछ नहीं है इसमें। ये बेसिकली क्या है, ये शॉर्टकट रास्ते हैं, जो आप फंस जाते हो ना कभी जिंदगी में, तो ये चीजें आपको बाहर निकाल के देती है। तो क्या होता है, जैसे आपको मानो कोई शीट डिलीट करनी है, आपको जो शीट डिलीट करनी है उसको भी सेलेक्ट रखना है इसमें आप। तो मैंने अभी ये वाली शीट डिलीट करनी है, मुझे ये भी शीट डिलीट करनी है, उसके साथ में और भी शीट डिलीट करनी है, और जो रखनी है मैं अलग से रख लूंगा। मैं राइट क्लिक किया और सेलेक्ट ऑल शीट, सारी शीट में सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब जो मुझे नहीं हटानी है सिर्फ उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, मुझे ये नहीं हटानी और ये नहीं हटानी, ठीक है। तो कंट्रोल दबाइए और क्लिक कीजिए, ये देखिए कलर चेंज हो गया। डेटा पे क्लिक कीजिए, कलर चेंज हो गया। दोनों शीट मुझे रखनी थी, बाकी कुछ नहीं रखनी थी। राइट क्लिक किया मैंने और मार दिया डिलीट, तो सारी शीट डिलीट हो जाएंगी सिवाय 2 शीट के। कौन कौन सी बची, डेटा और पिवट टेबल, करेक्ट। तो ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट क्या है, मतलब ये तो मतलब आप क्या जुगाड़ समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये कोई तरीका कोई ऐसे काम नहीं आएगा। जब आप काम करते रहोगे, फ्लो में रहोगे, तो आप अपने रास्ते निकालोगे। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कोई रास्ता मुझे बता दो कि सर आप ऐसे भी कर सकते हो, तो एक नई चीज मुझे सीखने को मिले। तो इसका कंटिन्यूस लर्निंग, मैं एक्सेल मतलब मैं यूज करते हुए मुझे ऑलमोस्ट आर्टिकलशिप से मान लीजिए तो ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं मुझे एक्सेल यूज करते हुए, और मैं आज भी कुछ नया सीखता हूँ। और खैर एक्सपेंड हो चुका है, अब तो पाइथन तक पहुंच चुके हैं हम लोग, पावर बीआई यूज कर रहे हैं, पावर बीआई से काम कर रहे हैं, और पावर बीआई के अलावा और भी बहुत कुछ अभी आ चुका है। अभी हमने पाइथन से डेटा लिंक होकर सीधे आ जाता है, और पावर क्वेरी आजकल चलता है। आजकल डेक्स फंक्शन बहुत अच्छे कर दिए इन लोगों ने, वो सब कभी कभी टाइम मिला, कभी कुछ एडवांस जब हम पढ़ेंगे तो हम करेंगे उसके बारे में बातचीत। अभी हम लोग, क्योंकि मेरे को बोला गया था कि मिक्स बैच होने वाला है, तो मैं शुरू से एंड तक लेके जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ एक टॉपिक जो है ना वो आपको पूरे तरीके से आ जाए, तो आप कम से कम आपको लगे यहाँ चलो पिवट टेबल जो है वो तो हमारी स्ट्रांग हो गई। इस सेशन के बाद आपको लगे यहाँ कुछ तो बेनिफिट हुआ। तो ऐसा हो सकता है किसी को 20% गेन होगा, किसी को हो सकता है 30% गेन हो जाए, किसी को 80% तक गेन हो जाए, क्योंकि जिसको लगता है कि मैं बहुत अभी इनिशियल स्टेज पे एक्सेल पे हूँ। और ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, ये ऐसी चीज में आपको एक्सेल आता हो नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर बिल्कुल जीरो थे ना एक्सेल में, तो भी जो मैं बता रहा हूँ कर सकते हो, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो हाई फाई हो, जो नहीं समझ में आए, बिकॉज दिस इज प्रोसीजर। तो जब प्रोसीजर चीजें होती है वो आप एक बार समझ लो कि प्रोसीजर कैसा होता है, फिर आप कर पाओगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक काम किया। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अभी सेल्स पर्सन जो डेटा था मैंने सेल्स पर्सन ले लिया था, अब मैं यहाँ से हटा के मैं डेट के साथ आपको प्लान करके दिखाता हूँ चीजें, बहुत मजा आएगा अब आपको, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आएगा जीएसटी वाले पार्ट में। या आपने कभी वैट रिपोर्ट बनाई हुई, क्वार्टर रिपोर्टिंग करनी है, सब करनी, उसमें बहुत काम आता है। तो मैं देखो ऑर्डर डेट ले रहा हूँ एक बार के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर है ना थोड़ा सा मेरा यूज किया हुआ है बार बार, तो एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले सही कर देता हूँ प्रॉब्लम को। अब देखिए आप जब भी डेट पे क्लिक करेंगे ना डेटा में जाकर के, तो आपकी डेट ऐसे आ जाएगी। अब मैं डेट को अमाउंट भी ले लेता हूँ, डेट के साथ मैंने अमाउंट लिया और यहाँ पे डाल दिया, करेक्ट। तो मेरी जो डेट है उस डेट पे कितना अमाउंट का माल बिका था, 248। तो देखिए नंबर ऑफ डेट्स यहाँ पे आ रही है टोटल। हो सकता है कोई डेट रिपीट हुई हो, तो मैं टोटल काउंट आपको बताता हूँ। हो सकता है एक दिन में एक से ज्यादा काम हो गए हो, तो मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको कि टोटल वैस काउंट कितना आ रहा है, 96। और टोटल काउंट आना कितना चाहिए था, 99। 3 का डिफरेंस है, क्यों है, बिकॉज हो सकता है एक डेट पे 2 बार हो गया हो काम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है हमारा 2-1 का जो डेटा था, उसमें देखिए 248 हमारी सेल हुई थी। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा जब आप डालोगे तो ऐसे आएगा। अब ये मेरा डेटा था, ये मेरा अमाउंट था। कोई मुझे बोलता है सर मुझे मंथली बता दो आप कि मंथली कितना कितना बेचा आपने। मैंने कहा मंथली तो बड़ा टफ है, इसमें निकालेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा और मंथ को फिर अपन फ्रीज करके ग्रुपिंग करके कुछ करेंगे। तो क्या ये काम पिवट टेबल कर देगी, बिल्कुल कर देगी। अपन देखते हैं कैसे होगा। आप यहाँ पे इस डेट पे जाके राइट क्लिक करिए, यहाँ पे नीचे आपको ग्रुप दिखेगा, ग्रुप। जैसे आप ग्रुप करेंगे ना इसको, तो आपको ऑप्शन पूछेगा ये। चूंकि ये डेट है ना, तो इतना इंटेलिजेंट है एक्सेल, आप देखिए इसकी जो स्टार्टिंग डेट इसने अपने आप उठा ली और एंड डेट है वो भी अपने आप उठा ली, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग डेट ये बता रहा है कि सर आप 2/1/2013 यानी 1 जनवरी 2013 से आप शुरू हो रहे हो और 1 अक्टूबर 2014 तक आप जा रहे हो। ये आपका डेटाबेस का डेटा मुझे बताता है, नहीं स्टार्ट डेट और एंड डेट उसने उठा ली। अब मैं इसको मंथ दे रहा हूँ और देखिए इसमें ईयर भी है 13 और 14, मतलब 13 और 14 2 ईयर है हमारे पास, सेम ईयर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं मंथ लेके ओके कर देता हूँ। देखिए अब क्या होता है, जनवरी में मैंने कितना अमाउंट बेचा, फरवरी में मैंने कितना अमाउंट बेचा, मार्च में मैंने कितना अमाउंट। अगर मानो 3B का डेटा होता तो हम 3B में ही निकाल लेते। ये तो अभी एक ही कॉलम है, यहाँ पे आपका जीएसटी कितना दिया, ये सब भी कॉलम आ जाते हैं, ऐड हो जाते, कोई इशू नहीं है।
और डेटा में समराइज करके आपको देता। टोटल डेटा में से आपको निकालना है क्वार्टरली, ये निकाल के दे देगा। कैसे निकालेगा, क्वार्टरली भी चल के देखते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, ग्रुप पे गया मैं, यहाँ देखा क्या क्वार्टर का ऑप्शन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो मंथ हटा रहा हूँ मैं, क्वार्टर ले रहा हूँ सिर्फ, ओके कर रहा हूँ। सी क्वार्टर, पर इसका क्वार्टर हमारा क्वार्टर अलग है। कैसे इसका क्वार्टर चलता है, वो चलता है, वो हम चेंज करेंगे क्योंकि बिकॉज ये यूएस के साथ चलता है। यूएस में क्या होता है कि क्लोजिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की दिसंबर में, इंडिया में क्लोजिंग होती है मार्च में। तो इनका क्वार्टर जो पहला क्वार्टर का डेटा है वो आएगा जनवरी टू मार्च। सेकंड क्वार्टर कौन सा हुआ, फिर हमको उस तरह से देखना है। हमारा सेकंड क्वार्टर अपना फर्स्ट क्वार्टर, उनका सेकंड क्वार्टर हुआ, ठीक है। पर सर आप ईयर तो बताओ, बात तो सही है, ईयर तो आया ही नहीं। तो ग्रुप पे चलते हैं वापस, यहाँ जाकर के हम लोग ईयर पे बात करते हैं। हमने लिया ईयर यहाँ से और ओके कर दिया। सी 2013 का पहला क्वार्टर, 2013 का दूसरा क्वार्टर, 2013 का थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। पर 2014 में थर्ड क्वार्टर ही है, फोर्थ क्वार्टर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज डेटा हमारा कहाँ तक का है, हमारा डेटा थर्ड क्वार्टर पे अटक जाता है। इसके आगे डेटा हमारे पास है ही नहीं 2014 में, ठीक है। अगर मैं इस क्वार्टर को यहाँ से हटा करके, देखिए ये क्वार्टर यहाँ पे मिलेंगे आपको। अगर मुझे लगता है मेरे क्वार्टर जो है, ये जो ईयर मैंने ले रखे हैं यहाँ पे, ईयर को उठा करके मेरे को लगता है ऐसे नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, कॉलम पे डाल देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम में, इसको मैं यहाँ से यहाँ भी कर सकता हूँ और इसको यहाँ से हटा भी देता हूँ, ये आ गया। सी क्वार्टर 1 2 3 4, लेकिन ईयर देखिए आप चेंज हो गए। यहाँ पे ईयर को मैंने इधर डाल दिया और क्वार्टर्स को मैंने यहाँ डाल दिया, करेक्ट। तो हमारा डेटा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया एक बार में, हमें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ी। और 13 14 अलग करना जरूरी क्यों था, बिकॉज कहीं तो ऐसा नहीं हम लोग गलत डेटा पे जा रहे हो। तो हमें देखना पड़ेगा वो जनवरी फरवरी आए थे वो बहुत ज्यादा डेटा सही नहीं था, बिकॉज वो ना 13 और 14 दोनों को जोड़ रहे हैं। पर मुझे मंथली चाहिए, मान लो आपको मंथ भी चाहिए थे, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करो, वापस जाओ यहाँ पे ग्रुप पे, यहाँ इसको जाके बोलो सर हमें मंथली डेटा चाहिए। तो मंथ पे चले जाओ, ये हटा दो मिनट्स और ओके करो। क्वार्टर 1 जनवरी फरवरी मार्च, क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 2014 के क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 सितंबर तक का डेटा हमारे पास है। इसका क्या डेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें डेटा जो हमने देखा था उसमें क्या क्या अमाउंट आ रहा था। अभी सम देखिए हमारा, अभी मैं ऑर्डर डेट है उसको मैं चेंज करके कहीं भी ले आ सकता हूँ। मैं अगर यहाँ ले जाऊँगा तो चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, क्वार्टर क्वार्टर यहाँ आ जाएंगे और डेट देखिए यहाँ फरवरी मार्च अप्रैल यहाँ चली गया, बिकॉज ये मंथ हमने यहाँ पे ग्रुप किए हुए थे। यहाँ मैं डाल रहा हूँ वापस। ईयर्स को आप चाहो तो यहाँ ले जा सकते हो। आपको कोई बोले सर ईयर्स को डेटा में 2013 यहाँ चाहिए 2014 वहाँ चाहिए, कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे अपन। ऑप्शन में जाते हैं, सिंपल रिपोर्ट कर देते हैं और बोलते सर ईयर वाइज बना दो, ओके लो सर ईयर वाइज बन गया। ये आपका 13 है, ये आपका 14 है, डोंट वरी। 13 डेटा अलग कर दिया, 14 का डेटा अलग कर दिया। आप उसे क्वार्टर वाइज अलग कर दो, क्वार्टर वाइज अलग कर देते हैं। तो हम लोग चले गए शीट के अंदर, क्वार्टर पे चले गए। हम लोगों ने क्या किया, ईयर्स को उठा करके हमने क्वार्टर लिया, क्वार्टर को उठा करके फिल्टर में डाल दिया, ईयर्स को उठा के यहाँ डाल दिया। अभी ऑर्डर डेट आ रहा है, ईयर आ रहा है। ईयर देखो थोड़ा अजीब सा हो गया क्योंकि नीचे कर रखा है मंथ से, ऑर्डर डेट को नीचे कर रहा हूँ, ईयर्स को ऊपर ले रहा हूँ। अब देखिए, अब 13 का डेटा अलग चाहिए, 14 का डेटा अलग चाहिए, तो मुझे ईयर्स भी चाहिए ऊपर। सी ये ऑर्डर्स है मेरे पास, है ना। अब मुझे चाहिए क्वार्टर के हिसाब से, क्वार्टरली मुझे डेटा चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और मैंने बोला रिपोर्ट फिल्टर, ऑप्शन में गया, ये ऑप्शन अलग खुल गए। अब ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा आपको, ड्रॉप डाउन में जाके आप क्लिक करिए और ईयर को जाए क्वार्टर करके ओके कर दीजिए। सी द डिफरेंस, आपके क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 ये आ गए इधर। इनको राइट क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल करिए और एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज मेरे को सिर्फ ये वाली शीट चाहिए, ये वाली शीट चाहिए भाई, कोई सी शीट मुझे नहीं चाहिए। तो ये मैं डिलीट कर दिया, यहाँ से सारा डेटा चली गया वापस। वापस मैं डेटा पे हूँ, शीट पे हूँ। तो देखिए आप कितनी आसानी चीजें कर सकते हैं। अच्छा और क्या काम आ सकता है, यही वाला ग्रुप वाला काम। एक चीज और बता देता हूँ आपको साथ में, अब साथ साथ यहाँ तक गए तो वो भी बता देता हूँ आपको। मैं एक बार फिल्टर ऐसा बता रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा। मैंने अमाउंट उठा के डाल दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने अमाउंट उठा के रोज में डाल दिया, अमाउंट आ गया। कोई बोलता है सर मुझे ना रेंज बता दो आप, कि आपने 100 रुपए से लेकर के और 500 रुपए तक का कितना बेचा, या 200 रुपए से 300 तक का कितना बेचा, 400 से 500 के बीच में कितना बेचा। ये हमको कोई पूछना चाह रहा है। हमको ये तो पता है 7.5 अमाउंट है, फिर 20 अमाउंट है, फिर 21 अमाउंट है, पर हमको ये नहीं पता कि इसको है ना रेंज में भी अपन फिक्स कर सकते हैं क्या। हमें रेंज में फिक्स करने की कोशिश करनी है। इसको कैसे रेंज में फिक्स होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार अमाउंट करके और डाल देता हूँ कि मेरा अमाउंट यहाँ पे एक और आ गया। क्या 2 बार अमाउंट आ रहा है, बिल्कुल 2 बार आ रहा है। इसमें फॉर्मेटिंग आ रही है, इसमें फॉर्मेटिंग नहीं आ रही, बिकॉज डिपेंड करता है ना फॉर्मेटिंग की नहीं। यहाँ राइट करके क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हो इसकी। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट आता है, नंबर फॉर्मेट जाकर के आप इसको बोल दो करेंसी फॉर्मेट है मेरा और ओके कर दो, ये करेंसी फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा यहाँ पे वो चल रहा है डॉलर साइन, इसलिए आया बिकॉज मेरे पास जो कंट्रोल पैनल पे अगर मैं जाऊंगा तो लैंग्वेज देखूंगा तो मेरी यूएस सेलेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए एक बार नंबर फॉर्मेट में जाकर के और इसको नंबर ही कर देता हूँ ताकि अपन कंफ्यूज ना हो, और डेसिमल प्लेसेस भी रख लेता हूँ। चलो ओके डन, ये सेम सा आ गया।
अब इसका मतलब क्या है, मैंने क्यों किया, मैं चाहता हूँ ग्रुप करना और रेंज में ग्रुप करना। मैंने जाकर के इसको ग्रुप किया और रेंज बना दी। कैसे बनाई, मैंने बोला सर 0 से लेकर के और 100 की एक रेंज बना हुआ। कहाँ तक बनानी है, 3080 आ रहा है, मैंने बोला 3000 तक की बना दो, या मैं बोलता हूँ 3100 की बना दो। 100 के डिफरेंस में बना लेते हैं अपन। कितना डिफरेंस चाहिए सब में, 100 का डिफरेंस चाहिए। यानी रेंज क्या होगी, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, और वो जाएगी कहाँ तक, 3100 तक जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा करके और 200 कर दूं ताकि अपने को थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। ओके करके देखो आप, अब देखिए इस फर्क, क्या 100 to 200 में कितना अमाउंट आ रहा है, यानी इस वाला जो रेंज उसमें कितना माल बेचा हमने, 2931, 200 to 400 में ही। और जिस जिस रेंज में कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे रेंज ही नहीं आएगी। देखिए 600, 800, 800 to 6000, 1000 to, अब ये 1000 to 1000 to 1200 रेंज ही नहीं है कोई, आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई, बिकॉज यहाँ डेटा उसको नहीं मिला होगा। तो देखिए इसने रेंज बना दी यहीं पे, समझ में आया आपको। तो हम लोग रेंज भी बना सकते हैं। अब काउंट चाहिए आपको, नहीं सर कितना कितना बिका ये दाओ, आप काउंट दो, ये छोड़ो आप, मुझे काउंट में बदल लेते हैं, अपने क्या फर्क पड़ता है। यहाँ चलते हैं अपन, अपने देखा ही था काउंट कैसे करते हैं, वैल्यू इस पे जाके काउंट कर दीजिए आप इसको। 34 काउंट है। अभी बेसिकली क्या है, आपका फॉर्मेट था, नंबर फॉर्मेट था, तो चेंज टू जनरल, तो ये अब काउंट में दिखने लगेगा। आप इसको अमाउंट खींच करके एक बार और ले आइए, 2 बार आ गया, इसको एक बार अमाउंट ले लीजिए, एक बार इसको आप और सम ले लीजिए, सी। दिस इज कॉल्ड पिवट टेबल का मैजिक। तो ऐसे बहुत सारे काम पिवट टेबल पे कर सकते हैं। जो पिवट टेबल है हमारी, वो पिवट चार्ट से कनेक्टेड होती है। तो ऐसा मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हेलो, Sorry to interrupt you. यस यस, Sir, Lokesh Sharma wants you to repeat what you said last about analyze. व्हाट एनालाइज, He says एक बार repeat this, whatever you said last, if you could just say that again before the. अभी जो ये 20 ये वाला जो भी किया है 0 to 200 वाला, हाँ जी ये दोबारा करके दिखाऊं। group function, sir, he's saying ग्रुप group फंक्शन दोबारा बताऊं ना, Yes ठीक है, sir. ग्रुप फंक्शन दोबारा बताना है, राइट। Yes तो मैं चेंज बता देता हूँ वापस। देखिए मैं Yes. एक बार है ना डेटा जो है यहाँ से मैं एक बार पूरा जो शीट है एक बार हटा रहा हूँ सब यहाँ से, ठीक है। अब क्या है कि जैसे डेटा मेरा था, इसका पिवट टेबल यहाँ बना हुआ है, यहाँ मेरे पास फील्ड है पूरे, सारे फील्ड में से मुझे डेटा एनालिसिस करना था। मैं पे डेट बताता हूँ पहले, फिर डेट से वापस आ जाऊंगा। तो एक बार डेट कंप्लीट कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करूंगा पिछली बार से, है ना। तो मैं ऑर्डर डेट ले लिया मैंने, ये मेरा डेट आ रहा है, देखिए मेरा ऑलरेडी ग्रुप आ रहा है। पहले मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये अनग्रुप हो गया, देखिए अभी ये सारी डेट्स आ गई। आई हैव ऑल द डेट्स हियर, आई हैव ऑल द अमाउंट्स हियर, these are amount, these are count, is not sum, so I will change it to amount, so this is sum, ठीक है। now the sum we have here, now this is called date, this is called sum, then now I want to change it to group. अब how I can group this, go into click, just right click here, choose the group, now change it to month, month क्लिक करके आप ओके करिएगा। जैसे आप ओके करेंगे ना, यहाँ पे अप्रैल फरवरी मार्च ये सब आ गया, ठीक है। ये हमारे मंथ आए, पर हमको चाहिए था ईयर भी, बिकॉज हमें ईयरली सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि जनवरी हो सकता है दोनों साल में, जनवरी 13 में भी और 13 में भी और 14 में भी। डेटा हमारा अलग था। ग्रुप पे गए हम लोग, हमने बोला हमको सर यहाँ से ईयर्स भी चाहिए, ओके सी ईयर आ गए। हम ईयर को थोड़ा समझने के हिसाब से कॉलम में शिफ्ट कर रहे हैं इधर, ताकि आप समझ पाओ। जैन फेब जो है 13 का और जैन फेब जो है वो 14 का। सितंबर के पास हमारे पास डेटा नहीं है, इसलिए तीनों ब्लैंक हमारे पास है। यहाँ हमारे पास जनवरी से डेटा था, इसलिए जनवरी से डेटा हमारे पास आ गया, करेक्ट। इसको क्वार्टरली अगर आपको चेंज करना है, गो हेयर, क्लिक हेयर, क्लिक ऑन द ग्रुप एंड डीसेलेक्ट मंथ, सेलेक्ट ईयर, ठीक है, ओके, गेट इट सेलेक्टेड, देन सेलेक्ट ऑन द क्वार्टर ऑल्सो। नाउ ओके, नाउ सी द क्वार्टर्स, क्वार्टर 1 2 3 4, क्वार्टर 1 2 3, करेक्ट। दिस इज अबाउट डेट जो हमने किया। अब ईयर जो है वो यहाँ नीचे थे मेरे पास, मैंने शिफ्ट करके इनको कॉलम्स में डाल दिया, सी। आप देखिए 13 14, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, करेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर अगर नहीं है ना आपका, तो आप ये सब नहीं कर पाओगे, आपको बहुत एरर आएगी। तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर कर लीजिए पहले। अगर आपको लगता है कहीं कुछ ऐड करना है, लेस करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, कोई नंबर फॉर्मेट में रहे, टेक्स्ट फॉर्मेट में रहे। अब मैं आपको वही बताता हूँ जो मैंने नंबर के साथ किया। तो जस्ट आई एम रिमूविंग दीज फील्ड्स फ्रॉम द, ठीक है, लोकेशंस। नाउ आई सेलेक्ट अमाउंट हेयर, which is already by default in values. I will change it to ungroup because I already grouped them. Now there is amount, so value as sum. Now this is our data. I want to create a range here, right? So how I do this, let's
click on this, is a right click, right? Then select group, on the group starting at. So here it is showing 7.3. Why it's showing 7.3? Because the minimum value of this data range is 7.3, but I want 0 here. I want to create a range from 0, and the range, the difference of the range is 100, correct? So I have bucket of 100 or 200, whatever you want. So I am changing to the 100. Earlier I do in 200, right? So I took bucket of 200. Right now I am taking bucket of 100. The ending point is 30 and 13080. I am changing it to, for example, I am changing to 1500. मतलब मैंने 1500 तक का ही स्लैब ले रहा हूँ, उसके ऊपर मैं मानता हूँ कि मोर देन 1500 अलग से दिखा दे वो, मैं ये कर देता हूँ, या मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 3000 ही कर देता हूँ, राइट? तो हमारे पास 0 था और 3000 तक का एंडिंग पॉइंट लिया हमने, जो हमारे से 3000 से ज्यादा भी हमारे पास एक फिगर है जो 3080 है, हम 3000 पे फ्रीज कर रहे हैं इसको। बाय मतलब मैंने बोला इसमें 100 का डिफरेंस चाहिए हमें। बकेट कितना लिया हमने? 100 का बकेट लिया। इस बकेट में हम लोग क्या करेंगे? 100 से सेग्रीगेट करेंगे, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400 and so on, correct? So I am now clicking on the OK, just see the difference. Earlier what I did, I made bucket of 200, now I am making the bucket of 100. तो 100 के बकेट में आप इसको देखना जाएंगे तो देखिए आप यहाँ पे, अभी देखिए सबसे लास्ट में हमने 3080 लिया था, राइट? अभी देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 3000। अब इसके ऊपर जितनी भी वैल्यू है ना 3000 से ऊपर की, वो सब ऐसे दिखाएगा ग्रेटर देन, जबकि हम 3080 भी ले सकते थे, 3100 भी ले सकते थे, पर मैं वो रेंज बनाना ही नहीं चाहा, हमें लगा क्यों जाना। और देखिए अब कितना बड़ा डिफरेंस है, 1500 to 1600 की रेंज है, उसके बाद में कोई रेंज ही नहीं है, 700 की रेंज नहीं है, 18 की, सीधे 3000 पे, यानी इसके बीच में कोई डेटा इनके पास नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड रेंज। तो आप क्या कर सकते हो, रेंज के साथ भी ऐसा प्लान कर सकते हो, ठीक है? तो दिस इज अबाउट पिवट टेबल, कि हमने पिवट टेबल में बहुत कुछ किया, लेकिन पिवट टेबल में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और है, मैं आपको बताता हूँ, हम इससे डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें वो अपने हिसाब से चले, ठीक है? तो मैं भी एक बार ये ग्रुप वाला पार्ट है इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और आपको वापस नॉर्मल जो अपन बचपन में शुरू किए थे अपन इनिशियली, वो वापस आ जाते हैं अपन लोग। ये हमारा अमाउंट आ गया और ये हमारा वैल्यूज आ गया। देन इस वैल्यू को हम लोग चेंज करके सम बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड सम, करेक्ट? अब मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रोडक्ट रेंज भी चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको स्लाइसर समझा रहा हूँ। इस स्लाइसर क्या होते हैं बेसिकली, ये बहुत मतलब आप ये समझिए कि अगर आपको डैशबोर्ड बनाना है, चीजें इजीली देखनी है, तो आप स्लाइसर यूज करिए। मैं स्लाइसर डाल के दिखा रहा हूँ आपको, इंसर्ट स्लाइसर किया मैंने, और मैंने शिपिंग कंपनी का स्लाइसर लेकर के और लगा दिया, ठीक है? मैं कहाँ गया, मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ से गया, थोड़ा जल्दी हो गया ये। मैं स्लाइसर यूज कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा एक्सटेंड पार्ट पे चल रहे हैं पिवट टेबल के, स्लाइसर पे। एनालाइज पे जाएंगे, या स्लाइसर मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखिएगा 13 के बाद ही मिलेंगे। एक्सेल 2013, एक्सेल 2016, एक्सेल 2019 और ऑफिस 365, ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको स्लाइसर मिलेगा। इसके पहले के 2010 में और 2007 में आपको स्लाइसर नहीं मिलेगा, ठीक है? इंसर्ट स्लाइसर करता हूँ मैं क्लिक, यहाँ पे जाके आप बोलो शिपर कंपनी के साथ में स्लाइसर लगाना है, मैंने क्लिक करके रोक के कर दिया, सी यहाँ पे शिपर कंपनी का एक स्लाइसर बन के आ गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको साइड में रख लिया, ये स्लाइसर यहाँ लगा दिया मैंने। इसमें मैंने थोड़ा गैप दे दिया ताकि ये थोड़ा सुंदर दिखे। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा डाउन कर दिया, फिर डेटा दिखना बंद हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा वापस अप ले लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ से आप यहाँ पे आइए, अब आप फेडरल शिपिंग पे क्लिक करके देखिए, यहाँ डेटा जो है फेडरल शिपिंग का दिखेगा, एसपीडी एक्सप्रेस, पीडी एक्सप्रेस, यूनाइटेड पैकेज, यूनाइटेड पैकेज। रिमूव फिल्टर सारे दिखेंगे, किसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लो। स्लाइसर में आपको चेंजेस करने हैं, इसके ऑप्शन आ गए स्लाइसर के, आपको कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लीजिए। सी जो सेलेक्ट होगा येलो दिखेगा, बाकी सब वाइट दिखेंगे। ये देखिए जब मैं टच करूंगा येलो है, वापस गया वो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। ये देखिए ये स्लाइसर है। तो स्लाइसर हम लगा सकते हैं जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं। इसका भी बहुत बड़ा यूज है, लेकिन अभी इतना भी टाइम नहीं है कि हम पूरा पढ़ा पाएं, लेकिन मैं आपको फिर और चीजें इसके बारे में और बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं आइडिया बेसिक तो आपको दे ही दूंगा, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ना कैसे हम लोग काम करके और है ना टाइमलाइन यूज कर सकते हैं। टाइमलाइन बहुत अच्छी चीज है, वो हमेशा टाइम पे यूज होती है, करेक्ट है ना? तो टाइम होगा तभी यूज होगी, यानी अगर आप डेट नहीं है आपके पास आपके डेटा में तो टाइमलाइन यूज नहीं कर पाओगे। आप पिवट टेबल में जाइए, एनालाइज पे जाइए और आप यहाँ पे लीजिए इंसर्ट टाइमलाइन, सेलेक्ट दिस, ऑर्डर डेट, क्योंकि डेट पे रहेगी टाइमलाइन। अगर आपके डेटाबेस में डेट नहीं है ना तो आपका टाइमलाइन काम नहीं करेगा, ठीक है? अब देखिए आपकी टाइमलाइन ही आ गई यहाँ पे। अब देखिए जनवरी 2014, क्लिक, ये डेटा 2014 जनवरी का है, ये जुलाई का है, ये अगस्त का है, ये सितंबर का है, ये अक्टूबर का है। आपको यहाँ से चेंज करना है मंथ, आपको क्वार्टर लेने, क्वार्टर ले लो। क्वार्टर 2013 का फर्स्ट क्वार्टर, 2 का फर्स्ट सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप किसी सेशन में हैं
आपको किसी को बताना है कि सर वो बोले एकदम से बोलते बोलते आपका बॉस बोल जाए ये Q3 का डेटा देना एक बार, तो आप ढूंढने जाओगे या दूसरी शीट निकालोगे, जरूरत नहीं है, आप क्लिक करिए यहीं पे, बोल सर ये Q3 का डेटा, ये Q2 का डेटा है, ये Q1 का डेटा है। सेम 2014 के लिए Q1, Q2, Q3, Q4 में डेटा था ही नहीं, हमने पहले भी देखा था। Q4 में डेटा नहीं शो कर रहा है, वो डेटा क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हमारी जो डेट है वो Q4 तक जा ही नहीं रही है। अगेन Q3, Q2, आपको लगता है क्वार्टर के नहीं, हमें मंथली चाहिए, गो विद द मंथ्स, क्योंकि हमने क्वार्टर से मंथ में शिफ्ट देखिए, तीनों को सेलेक्टेड है। अभी मैं अप्रैल पे जा रहा हूँ सिर्फ, अप्रैल, मई, जून, मार्च, फेब, जनवरी 2014, करेक्ट। आपको 13 पे जाना है, इसको इधर ले आइए, स्क्रॉल बार है नीचे, स्क्रॉल कर लीजिए और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो ही टाइमलाइन, ठीक है। अब मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ कुछ और समझाने के लिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो डेटा हमारे पास था, ये हमने एक डेटा लिया, हम चाहते हैं कि एक पिवट टेबल और लगे इधर साइड में और उसमें प्रोडक्ट डेटा आ जाए, ये नहीं है प्रोडक्ट आ जाए। तो हम डाटा यहाँ डेटा पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं डेटा को, ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया, वापस में इंसर्ट पे गया जो हम पहले कर रहे थे, पिवट टेबल सेलेक्ट की, पिवट टेबल सेलेक्ट करने के बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट इस बार सेलेक्ट किया मैंने, पिछली बार मैंने न्यू वर्कशीट सेलेक्ट किया था, इस बार एग्जिस्टिंग ले रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए यहीं पे डेटा, यहीं पे चाहता हूँ मैं एग्जिस्टिंग, क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। आई गेट अनदर पिवट टेबल हियर, यहाँ पिवट टेबल 76 आ रहा होगा, वो जो भी आ रहा है उसको आप छोड़िए, अमाउंट को बताऊंगा क्यों आता है ये, कभी कभी डिटेल डिस्कस करेंगे, इन सब इस पर आप फोकस मत करिए, आपसे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैंने दूसरी टेबल ले ली, ये डेटा टेबल अलग है, ये डेटा टेबल अलग है, इसका फील्ड अलग है, इसका फील्ड अलग हो सकता है, पर अभी हमने कोई डेटा सेम लिया तो हमारा फील्ड सेम रहेगा। मैं यहाँ प्रोडक्ट ले लेता हूँ, देखिए प्रोडक्ट नेम एंड अमाउंट, अमाउंट को मैंने देखिए पहले वो कर दिया था ग्रुपिंग, तो ये अमाउंट अभी तक यहाँ पे ग्रुप में ही पड़ा है, इसको मैंने चेंज करके बना दिया। मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ। जूम आउट पे तो यहाँ काउंट आ रहा है, काउंट को मैं सम करता हूँ, बस ये हो गया मेरा सम, डन। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा स्लाइसर लगे टाइमलाइन के हिसाब से, राइट, मैं टाइमलाइन ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। किसी ने मुझे बोला कि सर आप है ना यहाँ पे एनालाइज, आप डेटा कर रहे हैं ना, डेटा पे जाके आप टाइमलाइन लगाइए, तो मैंने टाइमलाइन लगा दी, इंसर्ट टाइमलाइन, और ऑर्डर डेट पे टाइमलाइन लगा के ओके कर दिया। अब मुझे क्या लगता है कि दोनों डेटा साथ साथ चलने चाहिए, मैं ऑर्डर डेट यहाँ पे ला रहा हूँ, मैंने जन किया, देखो ये चेंज हो गया तो माइग्रेट पिकआउट आ गया, तो जुलाई कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या ये चेंज हो रहा है? क्या ये चेंज नहीं हो रहा? देखिए अक्टूबर लेता हूँ नहीं हो रहा, नवंबर लेता हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, एलएस मिटन वहीं की वहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। दिसंबर कर रहा हूँ, इधर तो सब चेंज हो रहा है, उधर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। देखिए इधर मैं इधर लेता हूँ, शुरू से बताता हूँ आपको, जनवरी में चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ, फेब में चेंज हुआ, तो ये चेंज हुआ, ये नहीं हुआ, बिकॉज ये लिंक नहीं है आपस में। तो आप रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे ना, तो आपको बताएगा सर ये वाली सेलेक्ट करनी है क्या, ये देखो डिसलेक्ट दिख रही है अभी तक, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप इसको ओके करिए यहाँ से। नाउ सी द डिफरेंस, मार्च कौन कौन सा प्रोडक्ट बिका था, कितने रुपए का बिका था और कौन कौन बेचने वाले थे। दीज आर द सेल्स पर्सन, दीज आर द प्रोडक्ट, दीज आर द अमाउंट। टोटल अमाउंट इज 1178, टोटल अमाउंट is 1178, here also 1178, here is 1178, these are product wise detail, these are sales person wise detail. Now change it to April, change it to May, June, July, February, January, whatever you want to change, whatever you want, just click here and get your results. This is called timeline, this is a slicer, this is timeline slicer, another is the slicer जो मैंने आपको बताया। अब वो कलर वाला चेंज करने है, चेंज कर लीजिए आप, ये और सुंदर हो जाएगा। डैशबोर्ड बनाते तो हम लोग को चार्ट भी बन जाता है यहीं से, तो आप अगर डेटा बेस सेलेक्ट कर लेंगे ना यहाँ से, इस डेटा बेस, मान ला इस वाला डेटा का आपको प्राइवेट चार्ट बनाना था, आप प्राइवेट टेबल के अंदर जाइए, एनालाइज में जाइए, यहाँ पे ऑप्शन होता है चार्ट का, आप प्राइवेट चार्ट बना लीजिए। यहाँ जाकर के आपने प्राइवेट चार्ट बना लिया, थोड़ा सा सुंदर सा चार्ट बना लेते हैं, ओके, दिस इज अ स्मॉल चार्ट फॉर योर डेटा बेस। यहाँ पे आकर के इसको थोड़ा कलरफुल बनाना है हमको, तो चार्ट के ऑप्शन आ गए ऊपर, यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन पे जाकर के थोड़ा सुंदर बना देता हूँ, आपको देखने में मजा आएगा, ठीक है। और इसके कलर कॉम्बिनेशन में मैं बदल देता हूँ, डन। अभी आप इसको चेंज करिए, आपका चार्ट बदलेगा, आपका ये भी बदलेगा। अभी से आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है, कहाँ डालना है, कैसे बनाना है, वो आप सब पे डैशबोर्ड मैंने आपको बताया। डैशबोर्ड ऐसे बनते हैं कि डेटा हमारे पास होता है, उसको हम स्ट्रक्चर कर देते हैं एक तरीके से, उसको जहाँ आप डालोगे ना, जैसे मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ तो दिखने में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ये देखिए सुंदर लगेगा, थोड़ा सा जगह चाहिए इसको ना। आप फैब्रिक पे जाइए, डेटा वो भी बदलेगा, ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं दोनों, जनवरी बदल रहा है, मार्च बदल रहा है, अप्रैल बदल रहा है, ठीक है, फिर मई बदल रहा है, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें इससे कर सकते हैं। तो मैंने एक आपको प्राइवेट टेबल का डीप आइडिया देने की कोशिश की है। प्राइवेट टेबल का स्कोप इतना ऐसा मैं नहीं बोल रहा,
देखो स्कूप्स का और भी है, आप उसको और जगह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे ना पावर पिवट होती है, आप अगर डेटा में जाएंगे ना, शो यू, जब आप ये सब कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे डेवलपर टूल आ रहा है ये वाला। तो ये मतलब एडवांस एक्सेल इतना होता है ऐसा नहीं होता। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास क्या, एक तो ये नहीं पता था कि हम लोग जो हम पढ़ रहे हैं तो कौन लोग स्टूडेंट है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन सी, मतलब ये तो पता है वो सीए स्टूडेंट है सब, पर कौन कितना जानता है, कौन कितना नहीं जानता है, कौन स्मॉल फर्म है, कोई कौन बिग फर्म है, मुझे कुछ नहीं पता था। कुछ शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी ज्वाइन किया होगा। तो सबका लेवल मैं असेस नहीं कर सकता यहाँ से बैठ के कि मैं कौन क्या, और ना मैं आपको रेस्पॉन्स भी ले नहीं पाते अपन जूम पे। तो हो सकता है कि हमें चीज़ें ना पता चले कि कौन ऑडियंस है मेरी, तो मैं पता नहीं चला पा रहा था। तो मैंने इसलिए ना बेसिक से लेके एडवांस तक लेके गया। पर ऐसा नहीं कि यहाँ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये इसमें पावर पिवट और है जो बची हुई है, जो आप कभी बोलोगे। अभी मैं यहाँ पे आपको एक्टिव करके दिखा देता हूँ, फाइल में जाके, ऑप्शंस में जा करके, और आपके एडिंग्स है यहाँ। ये एक्चुअली एडिंग्स है अलग से आपका, तो आपके एडिंग्स जब एक्टिव हो जाते हैं तभी वो चलेगी, ऐसे चलेगी नहीं वो। एक मिनट, ये थोड़ा स्लो हो रहा है मेरा सिस्टम। तो कॉम एडिंग्स में जा करके, तो ये है मेरी इंक्वायर, तो मेरे अभी काम नहीं आएगा। ये पावर पिवट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट। ठीक है, मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए सॉल्वर तो आ गया यहाँ पे, पावर पिवट अभी। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो आपको क्या है कि देखिए इसमें ना पावर पिवट और इसका एडवांस वर्जन है। उसमें क्या होता है कि जो भी आपका डेटाबेस है ना, एक सेकंड में इसको, तो अभी देखिए डेवलपर टूल होता है आपका, ये वीबी वाला पार्ट है, इसमें कवर होता है ये। इसमें मैक्रोज बनते हैं, आपके बटन्स बन जाते हैं, आपके बहुत सारे इंसर्ट बटन है यहाँ पे। आप जो भी बटन चाहो यहाँ पे बना के डाल सकते हो। डैशबोर्ड बहुत बड़ा एक पूरा चैप्टर है, फिर आप यहाँ पे बटन्स बना के कुछ भी इनसे एक्टिविटी करवा सकते हो। ऐसे ही आप लोगों को लगता है कि आपको ड्रॉप डाउन बटन बनाने, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन बटन बन जाएंगे। इनके अंदर फिर आपको जाके कोडिंग लिखनी हो तो कोडिंग लिखिए, कोडिंग आ गई यहाँ पे। ये आप देख नहीं पा रहे हैं तो विंडो चेंज हो गई मेरी। तो आपको अगर वीबी पे जाना है या आपको और या टूल्स पे जाना है तो बहुत कुछ और भी बचा है अभी। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ कि डेवलपर टूल आपका एक्टिव नहीं होगा, ये सिस्टम से एक्टिव होता है। ये आपको एक्टिव करना पड़ता है टूल बार में जाके। डेटा में जाएंगे तो सॉल्वर करके टूल होता है, ऐसे बहुत से और टूल होते हैं। सॉल्वर होता है, इंक्वायर होता है। ठीक है, आपको इसमें अभी शायद जूम वाले ऑप्शन पे दिख नहीं रहा, मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग नहीं देख पा रहे शायद। तो कुछ इसमें ऐसा है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर रखा होगा इन लोगों ने। ठीक है, तो ये जो पार्ट था ये मैंने आपको बताया, और जो मैं जितना इसमें बता दिया, मैंने लिंक करके दिखा दिया आपको टेबल को भी। तो ये वाला पार्ट था। अब ये वाला जो पार्ट है ये बेसिक हमारा पाइवट टेबल जो था, वो पिवट टेबल में जो जो हम कर सकते थे, ये भी आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है उसके हिसाब से है, और आप क्या क्या इसमें और ऐड कर सकते हो वो आपको जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा आप करते जाइए। लेकिन सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है। आप टेक्स्ट टू कॉलम को समझिए पहले, क्योंकि आप जब वीलुकअप लगाएंगे ना तब भी एरर आती है टेक्स्ट टू कॉलम की वजह से। तो हमें समझना पड़ेगा डेटा का नेचर क्या है। जो मेरी कोडिंग होती है वो कौन से नेचर, वो नंबर होती है कि टेक्स्ट। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि बैंक अकाउंट नंबर होता है, कभी आप जोड़ते नहीं हो उसको, ऑलवेज मेक इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, जैसे हमारा वेंडर कोड है, टेक्स्ट फॉर्मेट बनाइए। आधार नंबर है, टेक्स्ट फॉर्मेट है। जहाँ अल्फा न्यूमेरिकल है, पैन कार्ड अल्फा न्यूमेरिकल होता है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट हो जाता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी चीजें जो न्यूमेरिक दिखती है वो न्यूमेरिक नहीं होती है ना। और सबका एक सिग्निफिकेंट होता है। जब आपको बोलोगे सर पैन कार्ड, अगर आपको लगता है कि कोई बैंक अकाउंट नंबर है 15 डिजिट का नहीं है, तो आपका क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, 15 डिजिट क्यों नहीं है ये नंबर। आपको पता होना चाहिए आईएफएससी कोड होता है, उसके अंदर वो अल्फा न्यूमेरिकल होता है। तो अगर बीओबी का आप अगर देखोगे ना तो उसके अंदर हमेशा जीरो होता है, वो जीरो दिखता नहीं है, वो दिखता है ओ होगा। वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो आईएफएससी कोड बनते हैं वो अल्फा न्यूमेरिकल है। और बीओबी के जितने भी आईएफएससी कोड जिनका बैंक अकाउंट देखा होगा सबके सब न्यूमेरिक है, सॉरी सॉरी सॉरी, सबके सब अल्फाबेट्स में है, लेकिन एक जीरो आता है बीच में, वो न्यूमेरिक है। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती है। स्ट्रक्चर करने से के लिए कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता, डेटाबेस होता है वो स्ट्रक्चर होता है, तो उसके पीछे एल्गोरिदम होती है। कुछ भी कहीं भी चलता है ऐसा नहीं होता। तो ये डेटाबेस मैंने बनाने की कोशिश की, आपको मैं मतलब मेरी तो ये आशा है कि आपको शायद समझ में आया होगा। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं डेटाबेस में, मतलब बहुत सी चीजें इसमें है जो आपको मतलब सीख लेनी चाहिए। फ्लैश फिल मैं आपको दिखाता हूँ, छोटी सी चीज़ है, फ्लैश फिल बताता हूँ, बहुत ही मस्त चीज़ है, एकदम देखते देखते याद आ गया मुझे। अगर आपको शायद आता होगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आता हो तो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए रोहित प्रधान मुझे लिखना है, दिस माई नेम। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, नरेश लिख देता हूँ मैं। अब मुझे नाम इंदौरिया लिख देता हूँ, चलो है ना, और आशी और अत्रे। ठीक है, डन। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देखो यार, अभी ऐसे ही समझ लेना, मतलब कोई बात नहीं, चल जाएगा ना। अब मुझे मान लीजिए इसमें फ्लैश फिल करना है, बहुत सिंपल है। मैं एक नाम और डाल देता हूँ इसमें,
ठीक है, अब देखिए मान लो सबके आगे मुझे CA लगाना है, ठीक है, यहाँ मैं नेम लिख देता हूँ वहाँ पर, तो CA लगाना है, मैंने लिखा CA, ठीक है, मुझे एक बार ये करना है। अब मुझे जैसे CA लगाऊंगा ना इंदौरी, जैसे लिखूंगा मैं CA और N लिखूंगा, देखिए अपने आप है ना नीचे ऑटोमेटिकली इसने ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। सबके आगे CA लग गया, ठीक है। सेम अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे CA की जगह मुझे लगाना था, कि मुझे ऐसा लगाना था रोहित CA प्रधान, ये बनाना है मुझे, तो मैंने लिखा नरेश, जैसे मैं लिखूंगा अपने आप दे देगा ये। तो आपको इन सबको क्या करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कोई मेल आईडी बनाना है मेरा, मान लीजिए आप, तो मैंने बनाया रोहित, ठीक है, डॉट प्रधान @ICI, ये मान लीजिए मेरा एक मेल आईडी है। और सबके मेल आईडी मुझे ऐसे बनाने एक सेम ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैं लिखूंगा नरेश, तो देखिए सबके मेल आईडी बन गए, जिसको फ्लैश फिल, ये ऑटोमेटिक कर देता है। आपको लगता है मेरे को सिर्फ फर्स्ट नेम निकालना है, आप सिर्फ नाम निकालिए रोहित, फिर आप लिखिए नरेश, फर्स्ट नेम आगे, लास्ट नेम निकालना है, आप प्रधान लिखिए, आप इंदौरिया के आई दवाइए सिर्फ, ये फ्लैश फिल है, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे सारे अल्फाबेटिकली है ना सबके नाम जो है CA पहले लगाना है, मैं ऐसा लिखना है, चलिए एक और बता देता हूँ, रोहित प्रधान CA लिखना है। अब समझिए मतलब लर्निंग इतनी ज़्यादा हो गई एक्सेल की आजकल कि बहुत, ये तो बहुत पुराना खैर फंक्शन है, अभी का नहीं है, इसमें तो बहुत पहले आ गया था, 2013 में आ गया था फंक्शन, 2013 अगर आप यूज़ कर रहे थे तो उसमें भी आ जाएगा ये, इसको फ्लैश फिल। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+E, अगर ये ऐसे नहीं चल रहा ना तो आप Ctrl+E दबा सकते हैं, तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लैश फिल का शॉर्टकट है, ये फ्लैश फिल होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ होता है। इंसर्ट में रुकिए मैं बताता हूँ आपको, डेटा नहीं होगा, शॉर्टकट यूज़ करते करते हमें आइडिया नहीं रहता कहाँ चीज़ होती है। ये देखिए फ्लैश फिल है यहाँ पे, ये फ्लैश फिल आपको दिख जाएगा, डेटा में जाएंगे तो इस फ्लैश फिल में देखिए Ctrl+E शॉर्टकट दिखा रहा है अपने आप में ना, तो ये ऑटोमेटिक फिल कर देगा, आपको कुछ नहीं करना होता। सोचिए कितनी कम रो है, मैं इसको अगर बढ़ा दूंगा ना, अभी आप 10,000 रो पे ले जाइए इसको इमीडिएटली करके, अभी तो मैंने 5 नाम लिखे, आप 70 नाम लिख दीजिए, आप 1 मिनट लगेगी सबके आगे CA लगाने में, सबके नाम के आगे यहाँ से चल सकती हैं, आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा उठा सकते हैं, ये इंपोर्ट करने के तरीके एक्सेस से और वेब से डेटा सीधा आप एक्सेल पे ला सकते हैं, और बहुत चीज़ें और भी हैं जो आप सीख सकते हैं। ये सिर्फ एक मैंने एक्सेल में सिर्फ पिवट टेबल बनाया है जो बहुत बेसिक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एडवांस बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, एडवांस है ये, बस इसमें बहुत कुछ कवर हो जाता है कि आपको डैशबोर्ड वगैरह तक की मतलब बनाने तक का चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। तो सिर्फ ये आपको ना ओवरव्यू देने के लिए था कि हम लोग है ना क्या क्या कर सकते हैं पिवट टेबल के साथ भी, हो सकता है आपको बेसिक टेबल आती हो पहले, या हो सकता है ये भी आपको आता हो, इसलिए बड़ी बात नहीं है, बट मुझे सबको देख करके और सेशन लेना था तो उस तरह से मैंने इसको कवर किया। तो नाउ ओवर टू आशी। तो राइट नाउ आई एम थैंकफुल टू एवरीवन कि ज्वाइन किया आप लोगों ने और अपना टाइम निकाला। तो मेरी तरफ से इतना ही था अभी आज के लिए, और मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कैसा रेस्पॉन्स है आप लोगों का। So thank you so much. Now Ashi, I will continue. Yes, sir. Thank you, sir. That was indeed very enlightening. I am sure all of us are taking a lot more back than we came here for. And so there are a few questions. Yes. So Lokesh Sharma is asking, can we use more than one sheet to make one pivot for a large data, which Yes, may yes. not fit in one sheet? Also, Not he's fit in one asking sheet. how, yeah, sometimes Yes, the you can. data may be large. You can easily you can do that, but it will be go through Power Query or Pivot Pivot, not from simple data tool. You can use it, but you have to use Power Query, which is available in 2016 and 2019 Excel. Okay, sir, thank you. You have to add Sir, the data in the data model, then you can use that also. okay, sir. Sir, CA Karamveer Rathore is asking how to use pivot chart using pivot table. I show na. I show. In the last I already showed that कि हमने chart बनाया था ना, this is the chart. Yes, sir. It's automatically running with this. There are so many things in chart also, but it will again take 6 hour session for completing the chart part.
Okay, sir, also Ashish Kumar Singhal is asking that please share the data file for practice. So Acha, he wants, yeah, okay, he data wants file. some data file for practice. Yeah, sir. There are so many links are available on the website. You can check it out there. If there is still there is a problem, just a message to Ashi. Ashi, drop me a text message. I will revert you on that. We will Sure, share. sir. Sure, sir. So one more thing, Lokesh Sharma has again replied. He wants you to give an example on his question, which was when there's large data, can you make more than one table? Large data means I am saying already if the data is not fitting in the Excel rows which already decided, right? अगर आपको लगता है डेटा बहुत ज्यादा है जो आपकी रोज में भी नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि डेटा 2 शीट पे है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको डेटा मॉडल में ऐड कर लीजिए। पहले आप डेटा मॉडल में ऐड करने के बाद वो कंपेयर करके और आप उसको पावर क्वेरी पे डाल दीजिए और पावर क्वेरी पे डाल करके और आप उसको बना सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है डेटा 2 शीट पे है और आपको लगता है लेकिन रोज नहीं है इतनी ज्यादा, अगर मैं डेटा बड़ा डेटा का बिग डेटा का मतलब होता है कि इतना ज्यादा डेटा होना कि एक शीट पे कवर हो गया फिर दूसरी शीट पे मुझे डालना पड़ा, तो वो होता पहले कैसे था, पहले एमएस एक्सेस यूज किया करते थे फॉर लार्ज डेटाबेस। जब टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का आप काम करोगे, एयरटेल का या इन सब का, रिलायंस का, तो टेलीकम्युनिकेशन में डेटा क्या होता है, वो बहुत ज्यादा डेटा होता है, 10 लाख रोज से भी ज्यादा होता है। तब हमें एक्सेस यूज करना पड़ता है, उसमें जाके क्वेरी जनरेट करनी पड़ती है। पर अगर आपको लगता है इसमें यूज करना है, आजकल वो बात खत्म हो गई, अब पावर बीआई आ चुका है। आप उस डेटा को, अगर इतना ज्यादा डेटा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो लोकेश का क्वेश्चन है वो शायद ये होगा कि हमारा डेटा इस शीट पे फिट ही नहीं हो रहा, इतना ज्यादा डेटा है, तो गो विद द पावर क्वेरी। तो आप पावर क्वेरी पे डालेंगे, पावर क्वेरी से जनरेट करेंगे तो वहां से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और फिर आपको पावर बीआई पे जाके उसको एनालाइज करना पड़ेगा। Okay, sir. One more thing I want to add. There is Yes. a power pivot also. पावर पिवट क्या करता है कि आपके डेटाबेस में जब बहुत ज्यादा डेटाबेस होता है और आपको उसको रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ते हैं और आपको उससे डेटा रिट्रीव करना है, तो पावर पिवट आपकी हेल्प करती है। वो 13 में भी अवेलेबल है, 16 में भी अवेलेबल है। और पावर पिवट आप जाओगे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फाइल में जाओगे, डेटा भी शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी ना आपसे, नहीं शेयर्ड है अभी भी, शेयर्ड है ना अभी भी, तो मैं ऑप्शन पे जाता हूँ। देखिए आप जाएंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पे जाएंगे तो आप एडिंस पे जाइए, एडिंस में आप कॉम एडिंस पे जाइएगा, कॉम एडिंस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये दिख रही है पावर पिवट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल। ये आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आप ओके कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। अभी जूम के चक्कर में यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वरना शो करने लग जाएगा वो। उसके डेटा मॉडल में आप डेटा ऐड कर दीजिए, पावर पिवट अपने आप उसको कवर कर लेगा। Okay, so there's one more question. How can we extract numerical value from alphanumerical? न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम द अल्फान्यूमेरिकल कोड्स, यू कैन यूज Yes. टेक्स्ट टू कॉलम, वहां से निकल जाएगी। Okay, sir. तो सेग्रीगेट करके क्या होता है, अल्फान्यूमेरिकल जब डेटा होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं जीएसटी नंबर की बात करूं, तो अगर वो सेम लेंथ पे है आपका न्यूमेरिक और वो है, तो वो इजी होगा। अगर सेम लेंथ में नहीं तो फिर हमें वो उसके लिए इफ लगा के और मतलब कुछ फॉर्मूला फंक्शन रन करना पड़ेगा, तब निकलेगी। निकल जाएगी तब भी, ऐसा नहीं निकलेगी नहीं, पर हमें फॉर्मूला से निकालनी पड़ेगी। Okay, sir. So the questions are now done, and I would like to invite our program convener, Mr. Naresh Andoria, to deliver the vote of thanks. Thank you, Asi. Thank you, our chairman, sir, Anil Yadav, sir. Thank you, our secretary, Kuldeep Gupta, sir, कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज ए प्रोग्राम कन्वीनर होस्ट करने की। एंड थैंक यू, our स्पीकर रोहित सर, बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा सेशन था सर। सर मुझे लगा आप कुछ न कुछ, किसी ने कुछ भी ऐड किया होगा इन 2 घंटे में। अगर कुछ ऐसा ही लगाओगे, हम लोग शायद, हो सकता है कई लोगों को बहुत पहले से आता होगा सब कुछ, पर उसको अगर कुछ भी ऐड हुआ होगा तो मुझे बस वही एक खुशी है। तो आप लोगों ने शायद कुछ कुछ सीखा होगा इससे। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू नरेश और आशी और अनिल भैया कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और आईसीआई के लिए तो एनी टाइम। सर एक्चुअली 2 hours इज वेरी लेस टाइम, उस इतने से टाइम के अंदर सर आपने बहुत अच्छा समझाया सर। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू आशी, थैंक यू our event conveners, Neha Soni and our convener Solanki, both of you, and thank you all the participants. Thank you so much. Thank you. Okay, bye bye.
Sir, I would also like to transfer all the thanks from all the participants who are sending me messages in the chat box. So thanks a lot for your session. And lastly, I would also like to thank our chairman and our secretary, C. Anil Yadav sir and C. Kuldeep Gupta sir, for exposing us to this brilliant mind that you are, sir, and making our Independence Day celebrations so interesting and exciting. So a very happy Independence Day to all, and Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, happy Independence Day to all. Thank you so much. Bye bye. Take care.